Good morning, friends. Good morning, friends. Thank you very much, convener, co-convener, for giving me this opportunity to introduce our second speaker. After the very well first inning by our opening batsman, C. Piyush Bhai, right? Second session, we are also going to be very much interesting. We have with us CA Rajesh Bhai Sanghvi. He is going to enlighten us on very important case studies on the allied law, which will be useful not only in our day-to-day practice, but it will help us in other aspects also. So without now taking much more of your time, to formally introduce our second speaker, C. Rajesh Sanghvi sir. Of course, he's a practicing chartered accountant and having the experience of almost 4 decades. And his core area of practice is into the direct tax, Benami laws, FEMA, trust matters, and other allied laws, including RERA, etc. During his academic time, he scored ranks throughout all the CA courses. He is regularly giving the lectures on the direct tax matters, Benami Act, black money related matters, RERA related matters at the various forums. He is also associated with the various NGOs and religious trusts. So with this brief introduction, I would like to welcome our second speaker, C. Rajesh Sanghvi sir, in the round of applause. To present the memento, I would like to invite our member, CA Mahavir Agarwal sir, to present a memento to our second speaker, CA Rajesh Sanghvi ji. I would like to also invite our past convener, CA Seema Mehta madam, CA Mahesh Bagheria ji. Thank you. Sir, problem है? नहीं miss not. Okay, so it's 11:30. I give myself approximately 90 minutes. My guru is sitting over here, Subhashi, with your permission, Piyush, with your permission. Thank you so much. I'll be switching languages, English, Hindi, Gujarati, Marathi. Because कुछ slides जो है ना, वो typical नागपुर बेंच के हैं. अरे, and मुझे थोड़ा सा वो enact करना पड़ेगा कि क्या हुआ होगा उस समय हाई कोर्ट में. Anyway, we'll come to that part. So, my definition, learning is like driving. गाड़ी धक्का स्टार्ट होती है कभी कभी, फिर पिकअप होता है, फिर कभी फास्ट चलती है. आजू बाजू बैठने वाले यहां वहां देख रहे हैं. So you may also watch your WhatsApp. It's okay. It's fine with me. I'm not telling anybody to keep your WhatsApp or your mobiles on mute. Not at all. Because the mind is working. And कभी कभी boring हो जाता है. So you look outside, you enjoy. कभी नहीं, कभी break, कभी गाड़ी खराब, कभी slow. That's it. आज का ये presentation, just take it like a drive. You're going to listen to things. आप कुछ ऐसी बातें सुनने वाले हो, which is my research. And I share this with a lot of advocates also. Forget my professional life. But इसमें से बहुत सारी चीजें may not be of relevance to you. कोई बात नहीं.
My understanding is कि इतनी सारी स्लाइड्स में, and I'll have to go fast sometimes because actually ये 1.5 hour का सेशन नहीं है. Out of so many slides, अगर 2 स्लाइड भी आपको काम आ गए ना, I think so my job is done. Okay, with that I start. Now understand, मैं लगभग 30-35 लॉस के क्रिटिकल जजमेंट्स को फास्ट लेके गुजरूंगा और उस क्रिटिकल जजमेंट्स के 500 पेज के जजमेंट्स का रेलेवेंट पैराज आपको बता दूंगा बस. With due respect to all of you all are my fellow professional brothers and sisters. हम सब पढ़ते कम हैं. आधार का जजमेंट 566 कुट्टू स्वामी का जजमेंट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा. सॉरी, ओके, किसी ने नहीं पढ़ा होगा. और अब जब आप आधार इंटरलिंकिंग का प्रॉब्लम फेस करते हो ना, मेरी सारी बातों को कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स और अपने इनकम टैक्स से जोड़ते जाना. मैं भी जोड़ूंगा उन्हें. ओके, द फर्स्ट लॉ, आधार. ओके, आधार का पूरा नाम देख लो. दिस वाज बेसिकली मेंट फॉर गिविंग आइडेंटिटी टू दोज जिनको सब्सिडी, बेनिफिट, फलाना डिकरा लेना हो. आप में से कितने लोग गैस की सब्सिडी लेते तो भी छोड़ दो ना यार. हम सब सब्सिडीज, गॉड इज काइंड टू अस, हम नहीं लेते हैं, पर ठीक है. आधार वाज मेंट फॉर देम. ओके, आधार में इन्होंने शुरू में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ली, चलो ठीक है, सब कुछ ले लिया, लेकिन इन्होंने रिलीजन वगैरह कुछ चीजें नहीं ली. वेरी गुड. आपको मालूम है आधार का आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में, आई होप ऑल ऑफ यू नो, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका कोई डायरेक्ट टैक्स का केस जा रहा है ना, छोटा मोटा एसएलपी एडमिट हो गया, कितना टाइम देता है सुप्रीम कोर्ट? 30 सेकेंड्स. भाई साहब ने जो बताया 45 सेकेंड्स. आप जो आईटीओ, फेसलेस, सीआईटीपी, आईटीएटी, हाई कोर्ट, इतनी पोथियां बन गई होगी ना आपके सबमिशंस की. व्हेन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट 30 सेकेंड्स आउट. आधार का आर्ग्यूमेंट चला 4 महीने, 4 months. महारथियों ने आर्ग्यूमेंट किया है, और किस लिए किया है? आपके लिए किया है. और क्या कर रहे थे वो आर्ग्यूमेंट? यू गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू कवर इट फास्ट. आधार किसको लेना जरूरी है? रेसिडेंट को. रेसिडेंट का डेफिनेशन क्या है? इंडियन या फॉरेनर. लेकिन बिफोर द डेट ऑफ अप्लाइंग, अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में है तो ही हैज टू अप्लाई फॉर आधार. इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सब्सिडीज, क्या आधार लेना मेरे लिए जरूरी है? दिस कंट्रोवर्सी गोज ऑन. द आंसर वाज नो, जरूरी नहीं है. अब आप बोलोगे अरे बैंक वाला मेरा केवाईसी नहीं करता है, इनकम टैक्स मेरा लिंकिंग नहीं करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. I'll go fast. जैसे मैंने बताया 90 minutes I can't cover. There were over 40 laws, but it is meant for resident जो इंडिया में 182 डेज से पहले रहते थे. मैं कल अप्लाई करने जा रहा हूं, आज से 1 साल 365 दिन के अंदर 182 डेज से ज्यादा मैं इंडिया में हूं, टेक एन आधार. ओके, रेसिडेंट का देव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इज ओके. आधार में चेंजेस हो तो क्या करना पड़ता है? यू हैव टू इन्फॉर्म. कितने लोग करते हैं? रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट हो गया, हैव यू इन्फॉर्म्ड? आपका चेंज ऑफ एड्रेस इन्फॉर्म किया? आप अभी 182 दिन से ज्यादा नहीं हो, योर आधार कैन बी डीएक्टिवेटेड. नॉन रेसिडेंट होने के बाद फिर से इंडिया आ गए, 182 दिन से ज्यादा रह रहे हो. 182 दिन इज नॉट पर फाइनेंशियल ईयर. प्लीज सेक्शन 61 को ध्यान में मत रखो. अभी मैं आधार एक्ट की भाषा वापर रहा हूं. टोटल 182 इन द प्रायर पीरियड. आप फिर से एक्टिवेट कर रहे हो, फिर आप चले गए ऑस्ट्रेलिया 3 साल के लिए, फिर से डीएक्टिवेट कर रहे हो. These are all questions which are asked. Section 57 of आधार स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. अरे क्या कोई भी कंपनी ये वो मेरा आधार मांगती रहेगी क्या फॉर माय ऑथेंटिफिकेशन? ये सेक्शन को उन्होंने डिलीट किया सर्टेन पार्ट्स. उसके बाद क्वेश्चन आया कि नॉन रेसिडेंट्स का आधार, दे आर नॉट इन इंडिया, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर आधार ले रहे थे. और आधार के बॉटम लाइन पे पता है क्या लिखा था इन द फॉर्म, जो आपने पढ़ा नहीं होगा भरते वक्त? I am a resident. I have been staying in India for 182 days or more. अरे नॉन रेसिडेंट कैसे सर्टिफाई कर रहा है इस चीज को, और दे रहा है और आधार ले रहा है? इट वाज हैपनिंग. फिर उन्होंने इस प्रकार के नोटिफिकेशंस निकाले. आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग. मैं जो भी बोलने जा रहा हूं अगले 90 मिनट्स में इज नॉट फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. आई एम गोइंग टू कोट फ्रॉम हाई कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स. दैट्स ऑल. और मैं सब चीजें यहां पे दे रहा हूं. इट इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन, सो आई स्पीक विद दिस अथॉरिटी. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. नॉलेज इज नॉट माय प्रेरोगेटिव. सो दे रिमूव दिस सर्कुलर फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस. छोड़ दीजिए, एक और सर्कुलर निकाला, आपके काम का है. तो अभी नॉन रेसिडेंट्स को इन्होंने क्या किया? रेसिडेंट का डेफिनेशन आधार में चेंज कर दिया, एंड दे रोट
फॉर द पर्पज ऑफ नोटिफिकेशन नॉन रेसिडेंट मीन सो एंड सो आप सब पढ़ सकते हो। अब नॉन रेसिडेंट ले सकता है दो ही इज नॉट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। अब जाके ये गाड़ी बरोबर ट्रैक पे बैठी है। ये कब बैठी? 20 सितंबर 2019 को। उसके पहले अंधाधुंध चल रहा था काम। ओके, ये सब हो गया। अब आ गया all the great Prashant Bhushan and Dushyant Daves and all that trying to fight out a case against Aadhaar. नहीं, आधार नहीं चाहिए। Friends, disclaimer, I am not in favor or not against any particular political dispensation. Okay, I am only speaking the law and I am only speaking what I find in the Supreme Court. So they argued, the bench, the petitioners, पुट्टुस्वामी के केस में they argued, पुट्टुस्वामी himself was the retired judge, कि आधार हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? गवर्नमेंट हमारा 360 डिग्री प्रोफाइलिंग क्यों करे? मैं कहां फ्लाई कर रहा हूं, आधार लो। यार रेलवे टिकट, आधार लो। पैन को लिंकिंग, आधार लो। बैंक को देखो, आधार लो। सिम कार्ड लेना, आधार लो। हॉस्पिटल में जाना, आधार लो। अरे आधार आधार आधार, कितना तुम हमारा लिंकिंग और हमारी प्राइवेसी तुम कितना ट्रैक करोगे? और दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट दे रेज्ड। अगर आप में से जो स्टार मूवीज देखते हैं, आई एम एचबीओ एंड स्टार मूवी फ्रीक, सारी मूवीज देख लेता हूं मैं। बॉर्न लेगेसी अगर आपने देखी हो, I don't know if you all have heard this. Yeah, there are other movies also. उसमें what happens is, it's a dramatic, it's a dramatization. Imagine करो कि आप एक whatever it is, some intelligent agency को जो भी हो, और गवर्नमेंट आपके आधार को इनएक्टिव कर देती है। हाँ, विजुअलाइज दैट। अब आपकी लाइफ देखो, आपका आधार इनएक्टिव है, पैन उड़ गया, आईटी रिटर्न उड़ेगा, केवाईसी उड़ेंगे, म्यूचुअल फंड उड़ेंगे, मतलब आपका केवाईसी सफर करेगा ना। देखो बैंक और म्यूचुअल फंड और इनको कुछ लेना देना, आम्हाला काय माहिती, तुमचा आधार आणा बरोबर। एक कट ऑफ किया, बायोलॉजिकली आप अलाइव हो, सिविल डेथ है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एंड दिस हैज बीन अटेम्प्टेड, इसके ऊपर एक स्टार मूवी बनी थी। यूएस गवर्नमेंट किसी एफबीआई एजेंट फ्यूजिटिव हो जाता है, उसका रिमांड, और वो पासपोर्ट एयरपोर्ट पे जाता है, सर योर फोटोग्राफ इज करेक्ट बट योर नेम इज नॉट देयर, योर नेम इज नॉट देयर इन आवर रिकॉर्ड्स। वो बोलता है अरे मैं जिंदा हूं सर, सॉरी सर, योर नेम इज नॉट देयर, क्योंकि उसको डिफेस कर दिया सब जगह से। आधार पे दिस वाज द आर्गुमेंट। आधार पे ये भी मालूम था कि दे टेक द थंब इम्प्रिंट। थंब में ना, अगर आप ध्यान से देखो, लाइंस होती है। ये लाइंस को जब मैग्नीफाई करते हैं ना 100 मिलियन टाइम्स, तो आपको पहाड़ और दरारें नजर आएगी इनको। इट्स नोन एज मिनेशिया। हर एक की पहाड़ और हर एक की खाई, सॉरी आई एम यूजिंग दैट लैंग्वेज, अगर आप थंब इम्प्रिंट को मैग्नीफाई करोगे ना, तो आपको पहाड़ और खाई ऐसे नजर आएगी। हर एक की पहाड़ और खाई अलग अलग है। दे मेजर ये पहाड़ से ये खाई का डिस्टेंस, वो खाई से वो पहाड़ की ऊंचाई, ये पहाड़ से ये पहाड़ की ऊंचाई, हर एक की अलग है। दिस इज बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अब समझ में आई आर्किटेक्चरली कैसे चल रहा है कंप्यूटर पे? ऐसे चल रहा है। सिमिलरली आवर आइरिस ऑल्सो, दिस इज अ वेरी गुड डिग्री ऑफ परफेक्शन, दिस इज अ वेरी गुड डिग्री ऑफ परफेक्शन। ठीक है, चलो ओके। अब कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया बाय द काउंसिल्स। भाई आप लोग बोलते हो कि आधार उसको देंगे जो इंडिया में 182 डे से ज्यादा रहता है, ठीक है, आपके पास क्या मैकेनिज्म है चेक करने के लिए कि ये भाई साहब जो आपके पास आधार के लिए आया है इज इन इंडिया फॉर 182 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ कमिंग टू यू? आंसर नहीं। मतलब आप जो फॉर्म में लिखा वही शाश्वत सत्य मान लोगे? आंसर वाज यस। फॉरेन नेशनल्स ले सकते क्या आधार if they are in India for more than 182 days? Okay, and I have taken for foreign nationals, pure foreign nationals, I'm not talking of PIOCI. Okay, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो गया, बाहर चला गया, तो उसको आधार कैंसिल करना पड़ेगा। छोड़ के चला गया इंडिया, no longer in India for 182 days or more, you're supposed to intimate. Is there a concept of cancellation of Aadhaar? Answer was no. Strange. Okay. Food for thought. The concept of civil death was asked over here on page 84. And Prashant Bhushan and other argued that any government coming to power may freeze a person's Aadhaar. Convict हो, कुछ भी हो, fugitive हो, PMLA offender हो, कुछ भी हो, आप उनका आधार फ्रीज कर लोगे
अगर आपको कोई पॉलिटिकल अपील रोकना हो तो आप उस एरिया के आधार को, कुछ भी किसी का आधार, कोई नेता का आधार, कोई एक्टिविस्ट का आधार आप फ्रीज कर दोगे. फिजिकली इज अलाइव बट इन द आईज ऑफ लॉ ही विल फेस अ सिविल डेथ. उसके बाद सब कुछ है. फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो or have read at least about Article 360 financial emergency? Political emergency, I see a lot of seniors over here. 75 की मीसा की बातें आप लोगों को पता होगी. The seniors over here would be knowing मीसा में क्या हुआ था. Political emergency में. Financial emergency हमने आज तक face नहीं किया है. Article 360. Financial emergency भी एक concept है which is much more dangerous than political emergency. आधार फाइनेंशियल इमरजेंसी. फॉर अ मोमेंट आंखें बंद करो और सब लोग अपने आधार को फ्रीज कर लो. अब अपनी लाइफ को देखो. इट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन. दिस वाज इनेक्टेड ओवर देयर. एनीवे, देन दे आल्सो सेड कि आधार में आप किसी ने बायोमेट्रिक किया तो आप कितने टाइम तक रखोगे? इन्होंने बोला 5-5 साल. पेटिशन से आर्ग्यू किया 5-5 साल रखने की जरूरत नहीं, 6-6 महीने में उसके अपने आर्काइव्स में डालो, डिलीट करो. इतना डेटा रखो मत. देयर इज क्रिटिकल डेटा अबाउट एवरीबॉडी. आधार को आभा के साथ लिंकिंग कर रहे हैं, आधार को आपके कोविड के साथ लिंकिंग किया था, आधार को multiple linking हो रहा है and it is percolating, and foreign countries they don't allow so much of privacy also. That's why we have now the personal data protection bill. अगर किसी रूम में भी कैमरा लग रहा है तो प्लीज बाहर लिखो, आप मेरी इजाजत के बिना मुझे you can't capture me on camera. Similarly, even on a video call you can't do that without my permission. तो section 57 को strike off करने के लिए इन्होंने बोला everywhere they are asking for Aadhaar. These were the issues. Anyway, this judgment is very beautiful to understand कि कितना deep इन्होंने fight किया so that हमारी life Aadhaar dependent नहीं हो जाए. And today I'm quite sure many of you all will agree with me, we have become too much of Aadhaar centric. जिस समय आधार लिया था हमको क्यों नहीं बोला कि आधार और पैन को बरोबर नाम लिखना, राजेश में डबल ई आ गया तो बाद में आपका लिंकिंग नहीं होने वाला है? क्यों हमको नहीं बोला गया सब बातें पहले? और अभी जाके आप बोलते हो 1000 रुपया भरो. ये तो एक इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं. देयर आर वेरियस प्लेसेस वेयर आधार लिंकिंग इज रिक्वायर्ड and we face a lot of problems when Aadhaar linking takes place for people who have lengthy names. ये पोर्चुगीज नेम गोवा वालों के देखो, प्रोनाउंस करना भी मुश्किल होता है. Okay, so it's very difficult. Anyway, what has happened. Then comes up the issue के is Aadhaar meant for identity or age proof? Bombay High Court का next judgment. Aadhaar is not meant as an age proof. Aadhaar is only meant as an identity proof. This is that particular judgment. So that is about Aadhaar, friends. If you do a little reading of Aadhaar, it can be helpful for all of us to understand for what people have fought for us. But unfortunately, that is the law of the day, and Aadhaar is percolating day in and day out deeply in our lives. Whether we face a civil death, we means anybody faces a civil death, time will tell. उस time पे session याद आएगा. Next act, Citizenship Act. आपको क्या लगा citizenship सिर्फ birth से होती है? Answer is yes, and answer is no also. Yes, birth से होती है, but citizenship is also by descent. Citizenship is also by registration, and citizenship is by naturalization. I'm not going much deeper into it unless a lot of you all have non-resident children. By naturalization, इतने type के citizenships होती है. By birth is not one thing. There are various other methods. OCI आपने शब्द बहुत वापरा. Okay, OCI का definition कहां से आ रहा है? 7A of Citizenship Act. Whatever we speak, whatever terminology we use, friends, हम हवा में बातें नहीं करते. You are not the layman. We speak from the law. ये कहां से आ रहा है? 7A से जन्म लेता है. And what is the OCI? I've written over here. I'm not getting into it. I'm just excluding this part. पहले PIO था, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया कि 31/12/22 के बाद PIOs, actually PIOs का कॉन्सेप्ट पहले निकल गया था, but 31/22 के बाद एंट्री के लिए, एंट्री into India, PIO card will not be used, only OCI will be used. So PIOs are merged into OCI. PIOs are merged into OCI from 2015. Okay, ये Ministry of Home Affairs का notification है, just for your knowledge, and this is the actual notification. छोड़ दो. Next law, Negotiable Instruments Act, Section 138, check bouncing. अभी इसमें क्या समझना है? इसमें अपने जानने की क्या बात है? तो लॉयर्स का काम है. बिल्कुल मानता हूं, लॉयर्स का काम है. थोड़ी एक बारीकी तो समझ लो इसमें, यू विल एंजॉय इट. चेक बाउंसिंग कब होता है केस? जब चेक बाउंस होता है. रुक जाओ. नहीं. The check should bounce because the check was given for a legally enforceable debt. मैंने आपको गिफ्ट दिया 1 लाख रुपए का, चेक बाउंस हो गया, 138 बनेगा? So the word क्या है नीचे? Legally enforceable debt. यहां पे कैच करो, legally enforceable debt or other liability. So there has to be a liability. ये आरटीजीएस आने के बाद है ना, चेक नाम की चीज चली गई.
अदरवाइज चेक के पीछे लिखना इज अ ग्रेट पीस ऑफ एविडेंस। मैं आपको एक चेक देता हूं, पीछे लिखता हूं एडवांस टुवर्ड्स परचेज ऑफ योर हाउस एट जेबी नगर। आप वो चेक डाल देते हो आपके बैंक में, क्या इन्फ्लुएंस निकलेगा? अब मैं आपको आरटीजीएस करता हूं, आरटीजीएस में आई कैन राइट एनीथिंग इन द फॉर्म, बट चेक आई हैव गिवन इट टू यू एंड प्रेज्यूमेबली यू हैव डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। मैं भी कर सकता हूं बाय द वे। चेक्स मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। एनीवे, कमिंग बैक, द चेक बाउंसिंग हैज टू बी अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पे आ जाओ, छोटा सा केस सुप्रीम कोर्ट का। मैंने परचेज ऑर्डर प्लेस किया, चेक दे दिया, नेक्स्ट डे फोन करता हूं, अरे हेलो 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 प्लीज परचेज कैंसिल कर दो, मेरे को माल नहीं खरीदना है। चेक डाल दिया, बाउंस 138। इज इट ए लीगली एनफोर्सेबल डेट? हाई कोर्ट ने बोला हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। परचेज ऑर्डर कैंसिल, लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं आया। बारीकी पे जाना फ्रेंड्स, बारीकी पे जाना, कैच इट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी लोग देखो कितने उस्ताद हो गए। somebody gave me a cash loan 5 लाख, गुड्डी का केस, चेक दिया बदले में, लोन रिटर्न नहीं किया, उसने चेक डाला, बाउंस कर दिया। द आर्ग्यूमेंट बाय द पर्सन वाज, ठीक है इसने मुझे कैश लोन दिया, वो कैश लोन दे सकता है क्या इनकम टैक्स के हिसाब से? लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए ना। तुमने वो लॉ का वायलेशन किया है, कौन सा लॉ? इनकम टैक्स एक्ट। इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल डेट, इजीली लीगली एनफोर्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, दूसरी बात, तुमने मुझे 5 लाख ब्याज पे पैसा दिया, डू यू हैव मनी लेंडिंग लाइसेंस? डज महाराष्ट्र हैव अ मनी लेंडिंग एक्ट? रीडिंग फ्रेंड्स, Bombay Money Lenders Act 1952, which was before the formation of the state of Maharashtra on 1st May 1960, आज की तारीख में महाराष्ट्र मनी लेंडर्स एक्ट है, 2014 का एक्ट है। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। मेरा तो एक्चुअली 2 घंटे का सेक्शन सिर्फ उस एक्ट पे ही होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्या करते हैं, अपना क्लाइंट्स का रिटर्न फाइल करते हैं। 50 जनों को उसने लोन दिया है, सबसे 12% ब्याज आ रहा है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप रिटर्न फाइल करो। एम आई करेक्ट? Do you know you're violating Maharashtra Money Lenders Act? Yes. And do you know it is a cognizable offense? एक सरफिरा कस्टमर को सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाना है की साहेब सर्वांना व्याजावर पैसे देतो, सावकारी कायदेचा उल्लंघन आहे। ज्युरिसडिक्शन किसके पास है? हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मनी लेंडिंग? योर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, आप जो सीएचएस में रहते हो ना, ही इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ही कैन टेक कार्रवाई अगेंस्ट द मनी लेंडर। कम बैक टू द टॉपिक 138। सेकंड आर्ग्यूमेंट बाय गुड्डी, गुड्डी ने दिया होगा कैश, गुड्डी ने लिया होगा कैश, सॉरी। गुड्डी बोलती है कि भाई तूने मेरे को कैश दिया, तूने इनकम टैक्स का वायलेशन किया, ठीक है, तेरे पास मनी लेंडिंग लाइसेंस है क्या? कैन यू गिव मनी ऑन इंटरेस्ट? नो। लीगली एनफोर्सेबल डेट, दैट मींस यू हैव वायलेटेड दिस लॉ, यू वायलेटेड दैट लॉ। You can't come to the High Court when you're violating so many laws, and hence it is not a legally enforceable debt. देखो आर्ग्यूमेंट कहां से कहां गया। ऑफ कोर्स इसमें एक थर्ड एंगल आ गया, इसमें एक थर्ड एंगल आ गया। व्यक्ति ये बोलता है कि तूने मुझे 5 लाख दिया ना लोन, ठीक है, कैश में दिया ना, ठीक है, तेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? कोई 5 लाख लोन बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्या? क्या आप दिखाते हो? पहली बात तो 44AD में बैलेंस शीट बनाते हो क्या? 44AD हम किसको समझाएं? कोण समजेगा 44AD? ये क्राउड के अलावा कौन समजेगा? पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्याला सांगायचं हे भाई साहेब याच्यामध्ये 44AD चा केस आहे, काय काय बोलतो तू? साहेब 44AD चा केस आहे, त्याच्यामध्ये बॅलन्स शीट बनवत नाही, सॉरी मी मराठी इज लाईक दिस ओनली। नो, दे डोंट अंडरस्टैंड, नो टू द कोर्ट्स। ये तो हाई कोर्ट तक गया, तो संजय मिश्रा के केस में दे अंडरस्टूड एंड दे सेड इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड। इसलिए कई बार एडवोकेट्स बोलते हैं आपके सीए को बोलो ना जरा एक बैलेंस शीट बना के दो। उसको क्या मालूम भाई साहब, मेरे को यूडिन भी करना पड़ता है, क्या हवा में क्या बैलेंस शीट बना के दे दूं जैसे कि कोई इट्स अ डिश। बट एनीवे दिस क्वेश्चन आल्सो केम अप over there. Thereafter, a recent case of Bombay High Court mein, here it was, here again in this particular case it was held that if you are not holding a money lending license and you are lending money, now one transaction of giving money on loan with interest cannot be treated as business of money lending. I can understand that. और इसके ऊपर भी बड़ा beautiful judgment है कि business of money lending क्या होता है। एक transaction, 2 transaction, 10 transaction,
साल भर में आना जाना, आपका इनकम का अधिकांश भाग इज इंटरेस्ट, इसका एक इंटरप्रिटेशन है विच यू ऑल कैन सी इन योर टाइम। मैं आपको साइटेशंस दे रहा हूं। एंड देयर आफ्टर बॉम्बे हाई कोर्ट केम टू द कंक्लूजन कि दिस इज बिजनेस और नॉट बिजनेस। इफ इट इज बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, आपके पास लाइसेंस है तो 138 खड़ा होगा, आपके पास लाइसेंस नहीं है 138 भी गया। एंड इन अनदर केस फॉर्चुनेटली द हाई कोर्ट हेल्ड कि आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा, बैलेंस शीट बनाने के नहीं बना वो देखेंगे। हाँ, मनी लेंडिंग के पॉइंट पे द हाई कोर्ट हैज कम डाउन वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। I hope that is a takeaway for all of you all. Be very careful when issuing checks and be very careful when writing behind what is written on the check. And be very careful when a client says, साहब एक agreement बना दो ना, मैंने इसको 3 लाख रुपया दिया है ब्याज पे 12%, 3 साल में रिटर्न करेगा। Be very careful in documentation. Next, animal laws. आप बोलोगे animal law का मेरे से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मुझे ब्यूटीफुल जजमेंट मिला, और नीचे जो लिखा है ना हरियाणा, ये क्या था मालूम है? दिस वाज अ काउ स्मगलिंग का केस था। बीफ वीफ का कुछ होएगा, काउ स्मगलिंग, गाड़ियां पकड़ लेते हैं, बीफ काउ एंड काउ प्रोजेनी को ले लेते हैं, सो वो केस था, ठीक है। इसमें पंजाब एंड हरियाणा केम अप विद सर्टेन टर्मिनोलॉजी, और कितनी हार्ड टर्मिनोलॉजी आई हैव नॉट फाउंड इन एनी जजमेंट्स। आई एम रीडिंग द एंटायर एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग एवियन एंड एक्वाटिक, जल और थल, वर डिक्लेयर्ड एज लीगल एंटिटीज having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of all the citizens of Punjab and Haryana were declared in person as loco parentis, आप उनके माने हुए माँ बाप, as a human face for the welfare and protection of animals, ठीक है। कौन बोल रहा है ये? हाई कोर्ट, एज इट इज मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट खोलो, 231 पे जाओ, 2 सबसेक्शन 31, पर्सन का डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये हाईकोर्ट ने क्या बोल दिया है? यू आर डिक्लेयर्ड एज अ लीगल एंटिटी हैविंग अ डिस्टिंक्ट पर्सोना विद कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स, ड्यूटी, लायबिलिटीज ऑफ अ लिविंग पर्सन। मतलब वो गाय बैल कमाता भी तो है ना, करके चल रहे हैं, कमाता भी तो है, टेक्निकली तो कमा रहा है वो, क्या वो अपना रिटर्न फाइल करेगा एज एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? सॉरी, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर मी एंड क्वेश्चन फॉर, वी हैव टू थिंक। हाई कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। सो दे आर डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग पर्सन। बच्चे का भी माँ बाप होता है ना, गार्डियन, बच्चा थोड़ी ना रिटर्न साइन करता है। जानवरों के भी लोको पेरेंटिस आपने बना दी है, so you are giving them a status of living entity, legal entity, living entity छोड़ो, legal entity बोल दिया है। This is an interesting issue which has come up, and they are also earning. Anyway, I'm just throwing open in the judgment, and they gave up its very good guidelines on animals, कितना उठा सकते, कितना चला सकते, क्या क्या लिखा है इस judgment में। One of the best pieces on animal welfare, if anyone of you all is an animal lover, कितनी डिग्रीज में कितना किलोमीटर चलेंगे, कितना रोकना है, कितना पानी देना है, कितना खाने को देना है, सब कुछ लिख दिया है। नॉट बीइंग फॉलोड वो एक बात अलग है, बट द लॉ इज देयर इन प्लेस। इसके बाद चलो हो गया एनिमल वेलफेयर का, फिर क्या हो गया? एक कुत्तों का प्रॉब्लम शुरू हो गया पूरे देश में। अपनी सोसाइटीज का, देयर इज वन सेक्शन व्हिच इज अ डॉग लवर एंड देयर इज वन सेक्शन व्हिच इज अ डॉग हेटर। वो बोलता है तुमको कुत्ते को खाना खिलाना तो घर में ले जाके खिलाओ ना, पालो ना 200-400 कुत्ते अपने घर में। एंड देयर आर सम हु से बेचारे जानवर है, पालतू है, इनका कोई नहीं है, हमें इनका ध्यान रखना है। So these issues came up, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। The matter has reached, नेहरू की सोसाइटी का मैटर has reached सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट came down very heavily and it has reached the Supreme Court also. A lot of it in favor of the stray animals. तो सबसे पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बोला हर सोसाइटी पेट्स के साथ टिपिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी और लॉ एंड कुछ गाइडलाइंस बनाएगी as far as pets and people are keeping pets. I'm not going very deep, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड के रेगुलेशंस हैं। And then came Animal Birth Control Rules of 2023. हम लोग ये सब कुछ पढ़ते नहीं है, रेलेवेंट पार्टी आपको बता रहा हूं। It shall be the responsibility of the Resident Welfare Association, यानी कि आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो फीडिंग द कम्युनिटी एनिमल्स रिसाइडिंग इन द विसिनिटी।
and taking care of them. पूरे गांव भर के कुत्तों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं, द लॉ इज सेइंग गुड गुड. मैं सी आई टोल्ड यू, मैं मेरा डिस्पेंसेशन नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग द लॉ. इफ आई एम बीइंग अ लिटिल ड्रामेटिक, प्लीज फॉरगिव मी. वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, ये गया सीवुड्स के एस्टेट हाई कोर्ट मेरिट में, ये गया उधर. और यहां से पता चला फ्रेंड्स, आई अंडरस्टूड, जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स है ना पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे इंटरनेशनली जानवरों के लिए वर्ल्ड चार्टर्स निकले हैं एज फार एज द प्रोटेक्शन एंड द बेसिक राइट्स, एंड दिस इज ऑल दोस, एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी, and they have been captured in the high court order. They have written over here, I'm not going deep into it. They have mentioned about the OIE, which is a French term, I can't get the whole word, and they have mentioned about their rights. They are recognizing these 5 international freedoms for animals. They are recognizing this on an international basis. This is like the fundamental rights. For the first time you're finding animals के लिए something equivalent of fundamental rights. Fundamental rights नहीं है please, लेकिन High Court is making this statement are like the fundamental rights of human beings. और इसके बेसिस पे बहुत पहले हमारे जो राइट्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी कंपैशन फॉर एनिमल्स लिखा हुआ है. फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु आर एनिमल लवर्स, दीज आर वेरी टिपिकल थिंग्स एंड वेरी वेरी टिपिकल क्लॉजेस. फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पिजन्स इशू, उसके ऊपर 2 जजमेंट और है. There are so many acts, sir. I can answer your question, but can I rush through this? I will try my best to answer. Forgive me for that, but I will surely attend to that. I'm changing the subject. Arbitration Conciliation Act 1996. हाँ, ये तो एक छोटा सा क्लॉज हर एग्रीमेंट में होता है. फ्रेंड्स, इस क्लॉज को केयरफुली ड्राफ्ट करना. In an Arbitration and Conciliation Act का clause, I hope you understand what I'm saying. When you refer something for arbitration conciliation, if you use the language may, these are all judgments by the Supreme Court. If you use the judgment may, they can, they shall have the right, इसको optional माना जाएगा. अगर आपको arbitration में जाना है, or rather let me reframe my way of putting it. If you want to draft a document for a client, and your client is on the stronger side, you can put in an arbitration clause. You can put in an arbitration clause. Could be dispute हुआ, तो it will essentially go for arbitration, and the arbitrator is going to be Mr. Subhash Hajid, my friend. I'm just taking a name. Don't catch the names. He's a very good arbitrator, and the arbitrator will be Mr. So and so, and both parties have agreed to it. So tomorrow there is a dispute, आपको इसी आर्बिट्रेटर के पास जाना पड़ेगा. ऑफ कोर्स रिकोर्स टू सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 होता है हाई कोर्ट का, बट दैट इज गोइंग टू बी स्पेयरिंगली यूज्ड. हाई कोर्ट्स और सिटी सिविल कोर्ट्स क्या करें आजकल, आपके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, हमारे पास क्यों आए हो, पहले आर्बिट्रेशन खत्म करो. आर्बिट्रेशन अनसक्सेसफुल है 3034 में हमारे पास आओ, हो या व्हाटएवर, मत आओ तब तक. अरे आर्बिट्रेशन क्लॉज को यूज करो. इफ यू आर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, यूज इट इन योर फेवर. If you are on the stronger side. So these are judgments where the arbitration clause has to be very specific. Half-handed use नहीं कर सकते हो arbitration clause. अब एक और क्वेश्चन आ गया NM मर्केंटाइल के केस में. आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें arbitration clause डाला, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो arbitration clause कोलैप्स हो जाएगा क्या? पहले हाँ बोला, बाद में नेक्स्ट जजमेंट और आया जो ओवररूल किया. 7 जजेस का बेंच बैठ रहा है जस्ट टू एनालाइज दिस पॉइंट. दे सेड नहीं, इट विल नॉट बी ओवररूल्ड. व्हाई? एन अग्रीमेंट व्हिच इज नॉट स्टैम्प्ड प्रॉपर्ली इज इररेगुलर, बट इट इज नॉट इल. अभी एमनेस्टी कैसे आई है? ओके, इट इज इररेगुलर. इररेगुलरिटी कैन बी रेगुलराइज्ड. यू नो दिस मैक्सिम, आई नीड नॉट टेल ऑल ऑफ यू. So these are my suggestions. Be very very particular about these things under the arbitration. International document बनाते हो तो please put a clause of arbitration under the UNCITRAL rules. United Nations Commission on International Trade and Arbitration, उसका आप क्लॉज डालो. इट कैन बी रिफर टू आर्बिट्रेशन अंडर द यूनसिट्रल. ऐसा मैकेनिज्म है हाँ, जिसकी सीट स्विट्जरलैंड में होती है, लंदन में होती है, सिंगापुर में होती है. यू कैन रिफर टू देम. और अगर आपको इंडिया में करना है तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू में आप किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, बट देयर समथिंग लाइक MCIA है, मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. लोकल भी करते हैं ये लोग. दिस कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड जजेस एटसेट्रा. इनका ऑफिस वगैरह ये टिपिकल क्लॉज है फॉर ऑल ऑफ यू. और यूनसिट्रल का ये एड्रेस है, MCIA जो मुंबई का है उसका ये एड्रेस है. टॉपिक ओवर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट. हॉकिंग, मुझे क्या लेना था हॉकिंग से? मुझे भी मालूम है आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है.
आपके घर के बाहर हॉकिंग, मंदिर के बाहर हॉकिंग, रेलवे के बाहर हॉकिंग, इधर हॉकिंग, उधर हॉकिंग, कंप्लेन करो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, पुलिस में फोन करो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। हॉकिंग के ऊपर अच्छे जजमेंट्स देखो, मैंने तो यूज किया बांद्रा जैन मंदिर में, आई एम अटैच्ड टू दैट। बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसकी वजह से बीएमसी केम डाउन विद गाइडलाइंस, एटलीस्ट आपकी जानकारी के लिए तो है गाइडलाइंस, यू मे नॉट यूज इट, छोड़ दीजिए वो सब बातें। रेलवे स्टेशन से 150 मीटर तक हॉकिंग नॉट अलाउड, क्या मजाक बन गया है ना। मतलब एक्चुअली इतनी भी मौकरी मत करो लॉ का यार, अब तो ये लोग प्लेटफॉर्म पे ही जाके बैठ जाएंगे। स्कूल्स के 100 मीटर्स तक हॉकिंग अलाउड नहीं है। और ये 100 मीटर्स क्या है फ्रेंड्स? रेडियस है, रेडियस है, हाँ रेडियस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट ट्रस्ट, ब्ला 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 छोड़ दो, रिलीजियस प्लेसेस हॉकर्स 100 मीटर्स तक अलाउड नहीं, ये तो मैंने यूज किया है, आई हैव यूज्ड इट। जैन मंदिर था, प्रॉब्लम सब मंदिरों के बाद प्रॉब्लम्स होता है, आई नीड नॉट से जैन मंदिर, सब प्रॉब्लम्स होते हैं। आई यूज्ड इट 100 मीटर का, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए बाय द वे, ये क्या हाईकोर्ट पढ़ते हैं ना पुलिस वाले, तो थोड़ा सा होता है उनको कुछ। So these are the guidelines. This is the actual circular, and this was because of judgments. SGP बांस का केस आया 2013 का, और उसमें they came down very heavily कि तुम ये temporary structures वगैरह बांधते हो रोड पे, this that हॉकिंग के नाम पे निकालो। फिर ये भाई साहब पंकज अग्रवाल, इसको तकलीफ थी बहुत, इसके दुकान के बाहर हॉकिंग वाले आते थे बीएमसी निकालते थे, फिर आ जाते थे, फिर निकालते थे, फिर आ जाते थे। हाईकोर्ट में रिट में गया, और ये देखो लेटेस्ट जजमेंट है 2022 का। मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स व्हिच आई हैव टेकन आर रीजनेबली लेटेस्ट वंस, एक तो अभी 2 दिन पहले का मैं लूंगा। So this thing came up and then he went to the High Court, and the High Court also got extremely agitated about it कि क्या चल रहा है तुम लोग का। So High Court said कि हम ये रिट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, रिट को खुला रखेंगे। रिट पिटीशन था, हम ये रिट को खुला रखेंगे क्योंकि मुझे मालूम है ये हॉकर्स वापस आएंगे और तुम वापस आना हमारे पास, और भी सब लोग आना जिनको आना है। Sometimes you know the High Court also works very beautifully, and उन्होंने बोला कि अब ये हाई कोर्ट पंकज अग्रवाल का नहीं होगा, ये हो जाएगा पेडिस्ट्रियन एक्सेस सेफ्टी फुटपाथ के सुयो मोटो टाइप ऑफ रिट पिटीशन। टॉपिक खत्म हॉकर्स का। A4 size use friends. No, they are not. They are not. They are. Sir, I totally appreciate. But we as intelligentsia can use this against the agencies, and if not working, writ is the best way under 226. But that is the way life works. That is the way life works. Sir, with all due respect, may not cost 10 lakhs. अच्छे lawyers, और हमको भी अगर सब्जेक्ट आता हो तो 2-2.5-3 लाख में काम हो जाना चाहिए सर। I think so, sir. PIL should not be used recklessly because PIL के bench and check marks बहुत है. How are you affected? Are you looking for? और कभी adverse penalty ठोक देना हाई कोर्ट ने उस पर, तो PIL is a दुधारी तलवार फ्रेंड, ब्रह्मास्त्र है, बहुत संभाल के चलाना, बहुत संभाल के। रिट इज द बेस्ट। मेरे घर के बाहर हॉकर बैठा है, मुझे अफेक्टेड है, रिट 226 का खत्म। रिट को इस तरह रिजेक्ट नहीं करेंगे। एनीवे नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज के बाद जो भी आप, दैट्स माय सजेशन ना, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आज के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन, लेटर राइटिंग, इनकम टैक्स, CITP, ITAT, BMC, सोसाइटी, जो करोगे आप ड्राफ्टिंग, उसको टाइम्स न्यू रोमन में लेना, फॉन्ट का साइज 13 या 14 करना, लाइन स्पेसिंग हो सके तो 1.5 रखना, लेफ्ट मार्जिन, मैं बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ स्कूल लेवल। ये जब हमको सिखाया ना, ये आज हाईकोर्ट डंडा मार के हमको सिखा रहा है। दिस इज द गाइडलाइंस ऑफ हाईकोर्ट। दे आर सेइंग 75 GSM का पेपर वालो, आज के बाद आपके ऑफिस में 75 GSM का ही पेपर मंगाओ। महंगा आता है मुझे मालूम है, 70 GSM से महंगा आता है, मैं जानता हूं। Why I'm telling you all of this? आपका एक फेसलेस CITP, ITT हाईकोर्ट में जाएगा। जब वो हाईकोर्ट में जाएगा और अपने CITP में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में सबमिशन किया है ना, विदाउट नंबरिंग, विदाउट स्पेसिंग, कैलिब्री का 10 का फॉन्ट वापरा, एरियल का 9 का फॉन्ट वापरा, वो आपसे फिर से टाइपिंग करा के सब लेंगे। किसका काम बढ़ा तब? आपका काम बढ़ा। अब मैं वो चीज आपको अभी बता देता हूं, डोंट डू दैट। और अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो सॉरी, एक्सपांडेड नहीं है यहाँ पे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियरली, ये सर्कुलर कब का है भाई? 2021 का है। दे वेरी क्लियरली रिटन, फॉलो दिस, टाइम्स न्यू रोमन के अलावा फॉन्ट ही मत वापरना। दिस इज माय सजेशन। कहना करता सेल विद एचओ प्रॉपर्टी, कर्ता के मन में आया बेच दिया। अरे का तुम्हारे खुद का है क्या? हम तो कर्ता कोई समझते हैं ना। Sorry, that is the way I am.
So Supreme Court में this question come up कि can he sell? Answer is yes. लेकिन checks and balances. तो अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशन आए तो कर्ता कैन, और फिर भी इसके बावजूद भी कर्ता ने कर लिया एट द लॉस ऑफ अदर्स, दे हैव अ सिविल राइट टू sue फॉर एलिएनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. आई नो योर आंसर विल बी वो तो 20 साल चलेगा, हाँ चलेगा, बट दिस कैन बी द रीजन. सो इफ यू आर एन एचयूएफ जो अपना घर बेच रहा है, एचयूएफ के नाम पे घर है, ये तो अच्छा हो गया कि 154(b)(10 कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट में एचयूएफ को मेंबर बना दिया. टेक्निकली एचयूएफ इज ओनली अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पर्संस लाइक अ पार्टनरशिप फर्म. इट इज एन एंटिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी. So technically it cannot hold a property as such. टोपा में देखो तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन हमने एक प्रणाली का बना लिया बिकॉज हम इनकम टैक्स सेंट्रिक बहुत है. तो अगर एचयूएफ कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, डीलिंग कर रहा है, तो रिसाइटल्स होता है ना, रिसाइटल्स, उसमें मेंशन करना कि ये क्यों बेचा जा रहा है. गिव अ रिसाइटल, इसमें से कुछ भी उठा लेना, फ्रेम करना सेंटेंस को टू जस्टिफाई व्हाई द एचयूएफ हैज सोल्ड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ताकि कल अगर कोई मेंबर चैलेंज करना चाहे ना, this will come to your rescue. एक और जगह में बताऊंगा क्या rescue आ रहा है. Now friends, you all of you all know that daughter is also co-partner. You know that, and she has the right to demand partition. छोड़ देते हैं ये. Balance sheet confirmatory statement for limitation purpose. ये balance sheet और आपका date of signing का importance क्या है, ये judgment से देखना सुप्रीम कोर्ट का. I gave a loan to my friend. अभी वो मनी लेंडिंग छोड़ दो 2 मिनट. I gave a loan to my friend or whatever. I'm a creditor. 5 साल हो गए पेमेंट ही नहीं कर रहा. Can I file a civil suit for recovery, commercial suit, suit for specific injunction, etc.? You will say law of limitation 1963, 3 साल complete हो गया, you cannot do anything. Agreed. Now, my name is coming in his balance sheet. आज भी मार्च 23 की बैलेंस शीट जिसका ऑडिट आप लोगों ने सितंबर 23 में किया है, सितंबर 23 की आपकी साइन है और यहाँ पे पार्टनर्स की भी साइन है, assuming it to be a tax audit case and assuming it to be a corporate case. बैलेंस शीट पे साइन है, XBRL 2 मिनट के लिए छोड़ दो, साइन है सितंबर 23, तो मेरा लिमिटेशन तब से चलेगा 3 साल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट्स इंटरेस्टिंग एंड दिस इज एक्सेप्टेड. अब आपको बैलेंस शीट कैसे मिलती है वो आपको देखना. XBRL में तो बहुत कुछ निकलता है और डिजिटल साइन भी चलता है बाय द वे, सब मिलती है. Okay, so this is what was mentioned. So balance sheet date say it is going on. That is why it is normally advised to take regular confirmation letters, etc. as auditors on whichever side you may be. Friends, all of you all know COVID के time पे by default there were some extensions of time which are given by the Supreme Court. Is article staff an apprentice? Yes, actually treated as an apprentice, not a regular employee. Just for your information, these are judgments which are treating that as apprentice. Apprentice word का importance क्या है? Friends, ये 4 new laws 2020 में 4 लॉज, I'll just come to the names also. ये 2 लॉ तो है, कोड ऑफ वेजेस एक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020. इसमें एम्प्लॉय का डेफिनेशन डजंट इंक्लूड अप्रेंटिस, तो योर आर्टिकल स्टाफ इज नॉट एन एम्प्लॉई. आई होप यू ऑल नो कि these 4 laws, कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशन, ये लॉ आ चुके हैं, प्रेसिडेंट एसेंट मिल चुका है, नोटिफिकेशन मिल रहा है. बस किसी दिन ये बॉम्ब, और इतने सारे लॉज है ना, ये सब रिपील. कब फटेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि इसमें हम भी आ गए. हाँ मैं बता दूं, हम भी आ गए हैं. दे आर कवर्ड अंडर these 4 laws. अब जाके पढ़ना ये. आई हैव रेड these laws. There are a lot of things coming in this. बोनस के प्रोविजंस हैं. आपका बेसिक कैनॉट बी लेस देन 50% ऑफ द CTC. बहुत कुछ उसमें रेगुलेशंस है और रिस्ट्रिक्शंस है, बट इतने सारे लॉज रिपील हो गए हैं, टेक्निकली नोटिफाई नहीं हुआ है. It is important for us to understand this is going to be a big bomb which is coming at any point of time. फार्म लॉस के टाइम पे हो चुका था लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ था. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इज इट ऑफ इंटरेस्ट टू यू ऑल? ओके चलो ठीक है, देख लेते हैं. पहली बात तो ये ट्रांसफर फीस 25,000 से ज्यादा लेते हैं, नहीं ले सकते. हाँ मालूम है हमको. अरे जबरदस्ती लेते हैं. हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है. ये भाई साहब को फ्लैट बेचना था, इसको बोला 5 लाख दे डोनेशन. तो बोला मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं फ्लैट बेच रहा हूँ, आई कांट पे 5 lakhs.
नहीं, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। खरीदने वाला क्या बोलता है, देखो मेरे को तुम्हारी सोसाइटी के झंझट में नहीं है, वो सब इजी है तो मैं लेता हूँ तुम्हारा फ्लैट, नहीं तो नहीं। ये बोलता है ठीक है साहब, मजबूरी है, 5 लाख। सोसाइटी बोलते नहीं, लिख के दो, आई एम वॉलंटरी गिविंग इट टू यू एज डोनेशन आउट ऑफ माई फ्री विल। पढ़े लिखे बहुत है सोसाइटी में, हाँ साहब लिख के देता हूँ। वॉलंटरी लिख के आ गया, 5 लाख का डोनेशन आ गया, जबकि 25,000 है फॉर रेसिडेंशियल, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लैट बेच दिया, ट्रांसफर हो गया। अब ये आदमी गया हाईकोर्ट कोऑपरेटिव से, मेरे से जबरदस्ती 5 लाख का डोनेशन लिया गया, मेरे से जबरदस्ती लिखवाया गया क्या वॉलंटरीली गिविंग। उसके एग्रीमेंट के रिसाइटल में उसने मेंशन किया था दैट इज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई सेलिंग अवे द हाउस। आप एक रिसाइटल का महत्व तो समझो, यू ऑल अंडरस्टैंड रिसाइटल्स, क्योंकि रिसाइटल्स अगर नहीं समझोगे तो मेरी बात पकड़ में नहीं आएगी। द पार्श्वभूमि इन एन एग्रीमेंट, द टाइटल ट्रेल एंड द पार्श्वभूमि, कोऑपरेटिव कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया है, वंस इट ट्रैवल्ड एट द अपर कोर्ट्स, द मैटर केम डाउन कि जो आदमी मजबूरी में पैसे के लिए अपना फ्लैट बेच रहा है, वो आपको 5 लाख का डोनेशन देगा। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्री कंसेंट सेक्शन 11, वो भगवत गीता भी अवतरित हुआ पृथ्वी पर, और उसने अपना रूप बताया, और सोसाइटी को सारा पैसा। इट्स एन इंटरेस्टिंग केस, इसके लिए मैं लाया हूं सबके लिए, जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ये रिट पिटिशन वगैरह हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। ओनर्स प्राइवेसी, मेरे घर के बाहर सामने वाले ने कैमरा लगा दिया, उसको रहता ऊपर है लेकिन सब सीढ़ी पे लगा दिया कैमरा। अभी उसके घर में कौन जाता है, जाए ना बाबा, मेरी प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, निकालना पड़ा। A lot of people have complaints कि मोबाइल टावर लगाते हैं तो मर जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, ये व्हाट्सएप पे बहुत कुछ घूमता रहता है। आंसर इज देयर इज नो ऑथराइज्ड स्टडी, आई कुडंट फाइंड इट, सो हो सकता है मेरे रिसर्च में कमी हो। I couldn't find anything, and Punjab and Haryana is also not giving a favor. At best, they stayed it, but they have not given that mobile towers cannot be placed and there is radiation. टेरेस को लॉक एंड की में रखना, पता है बहुत सारे लोग टेरेस की चाबी हमारे पास है। अच्छा, घर घर में भी चाबी दे देते हैं सोसाइटीज में, ऐसा भी सिस्टम है, जिसको जाना है जाओ। बॉम्बे फायर ब्रिगेड has said terrace cannot be kept under lock and key. इमरजेंसी हुआ, आग एक एक सेकंड में बढ़ता है, ये चाबी चाबी ये चाबी आपके पास, अरे देसाई साहब के घर में चाबी, अरे मल्होत्रा जी के घर में चाबी, अरे मल्होत्रा ने देसाई साहब चाबी लाओ, और ये रहा नोटिफिकेशन, लॉक टेरेस कैन नॉट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, बात खत्म हो गई। नो, नॉट इवन विद मेंबर्स, सबको चाबी दे देना, वो भी नहीं। No keys at all, no lock at all at the office, no lock at all at the terrace, no lock at all at the terrace, main terrace, huh? And refugee areas. Sorry, yeah, and refugee. सॉरी मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो रेफ्यूजी बोला तो यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा, दैट्स अ डेंजरस एरिया। नहीं सर, फायर ब्रिगेड ने ना बोला है, फायर ब्रिगेड ने ना बोलती है, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन दे दिया आपको। जी सर, 24 आवर्स ही होगा ना, आप तो बोलती नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आग ऐसे तो बोलता नहीं आग तो सॉरी, वी आर टेनेंट्स ऑफ अ सोसाइटी। सॉरी, आपने आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा, टीसी या टीओ लिखा होगा, टीसी मतलब क्या, टेनेंट को पार्टनरशिप, तो हम टेनेंट है क्या? मैंने तो फ्लैट खरीदा ना, मेरी सोसाइटी में तो मालिक हो ना, स्टैंप ड्यूटी भरा, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट। आपकी बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से जो भी वो बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनके दिल की, टेरेस पे लॉक ही लगा हुआ। सर मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए मैं भावना समझ रहा हूँ, इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एक ही स्लाइड में मुझे, आई हैव अ लॉट ऑफ लॉस टू कवर, आई एम जस्ट थ्रोइंग ओपन सो मेनी थिंग्स विद एविडेंस टू ऑल ऑफ यू ऑल। This is for all. My only effort is my research, that's all. Okay. Are you a tenant of the society? You are, the society is actually the owner of the so-called land and the superstructure. You are a tenant. हाँ, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट वाला टेनेंट हूं मैं, पगड़ी वाला? नो, यू आर अ ग्लोरिफाइड टेनेंट, ये बस फर्क है इसके ऊपर। No, I didn't mean that.
but you are actually a glorified tenant by virtue of your occupancy rights. You hold a share certificate. You are not a tenant qua Maharashtra Rent Control Act in that sense. इसके ऊपर ये पूरा चीज ब्यूटीफुली से एनालाइज किया गया है. Do you know सोसाइटी आपकी आती मोफा में? और do you know condominium concept? Sorry, so the today's topic is not for condominium vis-a-vis society. Condominium comes under Maharashtra Apartment Ownership Act 1973. In a condominium, you are the owner of the flat. And you are the pro rata owner of the land. और property card में pro rata आपका नाम आ सकता है. तो condominium का regulatory authority कौन था? कोई नहीं था. अरे तो अब इन्होंने deputy registrar को बना दिया है. Okay, so now the deputy registrar is the regulatory authority for condominiums also. 79 में छोड़ दो, redevelopment बहुत बड़ा issue है. Just wanted to tell you there is a judgment which says this is direction, this is directory, not mandatory, but there are other interpretations. Sorry, I'm not getting into the redevelopment part. Okay, so this was that particular judgment on 79A. ये interesting है. BMC taxes only after OC. Yes, तो OC तो लेता ही नहीं है बिल्डर. कितने फ्लैट्स बिल्डिंग्स है जिसमें ओसी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स लगती जाती है. सो द क्वेश्चन केम अप एंड दिस मैटर ट्रैवल टू द सुप्रीम कोर्ट. ये इफ आई एम राइट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने ये बोला कि ओसी तक का सारा चार्जेस बिल्डर भरेगा इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस. इट ट्रैवल्ड, बट डोंट यूज दिस जजमेंट रेकलेसली. अब मैं बिल्डर के हिसाब से आर्ग्यू करूंगा. I won't touch RERA right now because RERA has certain restrictions as far as that is concerned. For a moment, I'm not touching it. I want to answer this. Now I'm becoming a builder. ठीक है, OC तक मुझे भरना है ना, मैं भरता हूँ, लेकिन बिना OC आप बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कैसे कर सकते, खाली कर. So it's a brahmastra. Be very careful. हो चुका है मुंबई में. I don't want to take the names of the society. यहीं अंधेरी का. नहीं हमारी सोसाइटी में. So use it very sparingly and carefully. There can be no charges for parking allotment. छोड़ो ना, इसमें मजा नहीं आ रहा है. I'm not enjoying this. Nominee to be registered, चलो ये भी छोड़ दो. There's a cooperative society का issue. Notaries, wow. हमको नोटरी दिखता तो क्या दिखता है? 100 रुपया लाल ठप्पा. अब वो बेचारा प्यारा सा नोटरी जो कोर्ट के बाहर बैठता है, उसकी ताकत देखो. लॉ ने उसको क्या पावर्स दिए हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और बेचारे की हालत क्या होगी. सो नोटरीज एक्ट है और ये सब कर सकता है. And he takes an affidavit from a person. How many of you in your replies to faceless or CIT appeal file affidavits? Gift, loan, falana, tikana, whatever. We don't use affidavits, left, right, and center. Why? CPC में provision है. Affidavit, you can make a statement on oath and get it attested by the notary. नोटरी से तो हम affidavit तो करवाते ही हैं. और क्या काम कर सकता है? Attesting, authentication, etc. to take place. Effect outside country. पता है ROC में उनको कोई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम वहां का नोटरी मंगाते हैं और वो यहाँ का नोटरी मंगाते हैं. दैट थिंग कैन बी डन. ओके, ट्रांसलेशन करने के लिए काम आता है. आप फेसलेस अटेंड कर रहे हो, केरला में प्रॉपर्टी खरीदी है, मलयालम में लिखा है, ट्रांसलेशन चाहिए, ट्रांसलेट करो, कोचिन के किसी नोटरी से ठप्पा लो और फाइल करो फेसलेस में. ट्रांसलेशन में इज ऑथराइज्ड टू डू इट. ही कैन एक्ट एज अ कमिश्नर टू रिकॉर्ड एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल. सेक्शन 131 ITO, कॉलिंग द पार्टी फॉर एग्जामिनेशन. आप बोलते हो साहब 70 साल की बूढ़ी है, नहीं आ सकती है, फलाना आदमी है, उसने गिफ्ट दिया, लोन दिया, साहब नहीं आ सकता है. आप एक काम करो ना सर, यू सेंड अ कमिश्नर और यू कैन टेल द ITO आई कैन अपॉइंट अ नोटरी टू एक्ट एज अ कमिश्नर टू रिकॉर्ड एविडेंस. प्रोविजन है लॉ में. ITO को ना बोलने दो. हाई कोर्ट जाएगा तो क्या होगा मैटर? योर ऑनर, अंडर द नोटरीज एक्ट आई हैड गिवन दिस ऑप्शन एंड ही इज गिवन द पावर्स. द AO रिजेक्टेड दैट. यूज इट. दिस कैन बी डन. That poor notarist outside the court can act as an arbitrator under the Notaries Act. He can act a mediator and a conciliator. Unfortunately, we don't recognize that. हमारे notaries ये सब country में recognized है और ये सब के हमारे यहाँ. Apostilling. Apostilling क्या होता है? Apostilling वही होता है जो एक पायलट और ड्राइवर में फर्क है. Pilot is a glorified driver no, of a plane. Sorry, I'm just joking.
Apostilling is a glorified notary. Apostilling means एक महंगा नोटरी, बहुत महंगा नोटरी. सो ये वियना कन्वेंशन के बाद ये आया कि हम एक अपोस्टाइलिंग का सिस्टम बनेंगे हर कंट्री में, और आप नोटरी चाहिए तो नोटरी करवाइए आपकी कंट्री में डॉक्यूमेंट, और आपको अपोस्टाइलिंग करवाना तो आप रिक्वेस्ट प्लेस कीजिए अपोस्टाइलिंग का. अपोस्टाइलिंग विल बी चेक विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और अपोस्टाइलिंग यहाँ पे वीएफएस वगैरह करते हैं. अपोस्टाइलिंग महंगा होता है, और आप भी किसी फॉरेन कंट्री से अपोस्टाइलिंग करके मंगवाओगे ना भाई साहब, को महंगा पड़ने वाला है. बट अपोस्टाइलिंग इज नथिंग बट अ नोटरी ऑफ अ मच ग्लोरियस एंड अ ग्रैंडर स्केल. वेक्सेशियस लिटिगेशन एक्ट 1970 में, ये क्या पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये है. कुछ लोग ऐसा पैदा हो गए इस दुनिया में कि किसी के घर के बाहर रेती पड़ी ना, कंप्लेंट डालेगा. किसी ने छज्जा आगे किया ना, कंप्लेंट डालेगा. किसी ने बालकनी आगे की, कंप्लेन करेगा. किसी ने गाड़ी आड़ी खड़ी कर दी, कंप्लेन कर. वो पैदा ही कंप्लेन होने के लिए, और उनका काम है लिटिगेशन करना. या तो डिंडोशी में पड़े रहेंगे, या हाईकोर्ट में, या सिटी सिविल में पड़े रहेंगे. वो ये प्राणी नहीं पाए जाते. ऐसे होते हैं लोग. हाँ, सुबह उठी, सूरज की किरणें अच्छी है, ये बिल्डर का इतना ऊपर कैसे चढ़ गया, इसका आईओडी कैंसिल करवाता हूँ. Vexatious litigant, इनका भी एक्ट है. So there can be vexatious litigation. You have to make an application to the Advocate General of Maharashtra, अपने ITT वाली बिल्डिंग, and the Advocate General को लगा कि ये व्यक्ति रियल में vexatious litigation है, he can make an application to the High Court, and High Court can give an instructions, इस आदमी की कोई भी याचिका कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होगी. Other than 226, ना, रिट का पावर, फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते. सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है, दिस इज नोन. प्रॉब्लम ये है कि इस नोटिफिकेशन में सीनियर सिटीजन 60 है कि 65 है. ये हाईकोर्ट का सर्कुलर है, इसमें एक जगह पे 60 लिख रहे, एक में 65 लिख रहे हैं. सॉरी, ये सर्कुलर छोटा है, एक जगह पे 60 लिख रहे हैं, एक जगह पे 65 लिख रहे हैं. सीनियर सिटीजन कैन गेट बेनिफिट if they are above 60. You can make an application to any courts for that. HS not allowed in LLP छोड़ दो, बेनामी no payment no sale ये भी छोड़ दो, बेनामी the complete session. A lot of slides I'm just cancelling away, I'm running ahead. Foreign courts के orders are enforceable in India. Friends, do you know दुबई के कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर पास हो गया, राजेश संघवी से 5 लाख रुपए वसूल किया जाए, राजेश संघवी भाग के आ गया इंडिया, इंडियन कोर्ट्स में ऑर्डर एनफोर्सेबल है, यहाँ पे डिग्री ले सकेंगे. Corresponding orders are there. Corresponding. This is it. And this corresponding order is as per this notification. मुझे मालूम है आपका आंसर नहीं है, इसके लिए मैं नोटिफिकेशन लेके आ गया. ये नोटिफिकेशन 2020 का है. इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि ये कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट वहां की, और ये कोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स यहाँ पे अप्लाई, और हमारे वहां पे अप्लाई होंगे. और ऐसा प्रोविजन है सीपीसी में, सेक्शन 44A, इसको इन्वोक कम किया जाता है. हमारे ऑर्डर्स की अंमलबजावणी, मराठी में त्याला म्हणतात अंमलबजावणी, हुकुम की तामील, the tamil will be done over there and vice versa over here. Okay, similarly this has now also gone to the extent of these countries also. Okay, topic change. Doctor, hospital, सब पेशेंट मरने वाला है, साइन करो इधर. अरे मरता क्या नहीं करता, वो बोलेगा उधर साइन करना है, और साइन कर दिया, और डॉक्टर गलत नहीं करेगा, आई डोंट मीन दैट. बट यहाँ पे हो गया, आईज वाले का था, इसका कुछ किया रेटिना का, डॉक्टर ने बोला खराब हो गया, उसके पास जाओ, उसने बोला अरे उसने इतना खराब कर दिया, साइन करो जल्दी वरना जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओगे. साइन किया, अंधा हो गया. तो उसने बोला मुझे कुछ बोलते नहीं, कुछ भी नहीं, साइन करने को बोलते हो, खोल के रख दिया, एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डालना ही पड़ेगा. मैं क्या कर सकता हूँ उस टाइम पे? कैन आई रीड इट? कैन आई अंडरस्टैंड इट? You were just asking me to sign at a dotted place. That's all. So the courts went against the doctors. So this particular judgment is again from the consumer court, and it went that the consent has to be well informed. It just can't be a blank signing. Huh? It has to be reasonably well informed. That's why when you're signing on these documents, friends, I have a suggestion. Just a suggestion. Please don't take me adversely. Click an image on WhatsApp. After signing, please click an image on WhatsApp. क्योंकि जेरोक्स वो देने ही नहीं वाले आपको. नेक्स्ट केस इंश्योरेंस का, टाटा AIG. आई लाइक दिस केस पर्सनली, अमंग्स द फ्यू केसेस आई लाइक. एक रास्ता है, ये बाजू टाटा AIG के ऑफिस, यहाँ पर ये बाजू कस्टमर बोलता है भाई साहब मेरे बेसमेंट में दुकान है, इंश्योर करो. टाटा वाले आते हैं, बेसमेंट में दुकान को इंश्योर करते हैं, कहानी खत्म.
फिर बाद में बोलता है मेरे इंश्योरेंस को एनहांस करो, आते सर्वे करते, हो गया। बाद में आग लगती है, सर्वे वाले आते हैं, चेक कर लेते, वो भी ठीक है। बाद में टाटा एजी बोलता है सॉरी बेसमेंट में तो हम इंश्योर नहीं करते किसी को भी, आपकी बेसमेंट की दुकान है उसको तो हम इंश्योर नहीं करते। तुम लोग ने मेरा प्रीमियम लिया, तुम लोग ने मेरा रिन्यू लिया, तुम लोग ने आके सर्वे किया और बाजू वाले का भी किया, और आप बोलते हो तुम लोग, और तुम लोग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, तुमको दिखता नहीं है बेसमेंट में हो, और लिखा भी है तुम्हारे फॉर्म में। नाउ यू से दैट यू डोंट गिव अ क्लेम। और ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस में भी कितना होता है, मेडिकल इंश्योरेंस का 2 दिन पहले का गिव यू गाइडलाइन व्हिच हैज कम फ्रॉम IRDA. It's a fantastic guideline, you all should read it friends. This case traveled to Supreme Court and Supreme Court came down on these insurance companies. I guarantee to all of you all, including myself, including the Chief Justice of India, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म कभी जिंदगी में पढ़ा है, हाउसिंग लोन का पूरा डिटेल में पढ़ा है, मेडिक्लेम का कभी पढ़ा है, फायर इंश्योरेंस फलाना ठिकाना इंश्योरेंस पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ता है। So they came down very heavily on the concepts of oberima fide. You have to make critical disclosures very very clear. Fine print में लिखो नहीं चलेगा। These are just basic concepts I told you. Blue pencil doctrine, कितने अच्छे doctrines निकाले सुप्रीम कोर्ट ने। अगर एक एग्रीमेंट है उसमें एक certain part enforceable नहीं है तो just because of that part पूरा डॉक्यूमेंट कोलैप्स नहीं होगा, वो पार्ट ही एक्सपंज हो सकेगा, उसे ब्लू पेंसिल डॉक्ट्रिन कहते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ फैंटास्टिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंतर्गत भी बोला गया कि ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। एंड द एंटायर challenge or entire boja of proving a cases on the insurance, customer is very safe, let me tell you, because the customer says I'm in a very weak position, मैं टाटा AIG जैसे महारथी के सामने मैं क्या हूं। Court went on heavily on them and court will always go down heavily on the insurance ones because we are the affected and fine print में it is not expected. हाँ, sufficient information and then you also can't take advantage. In fact, unfair contract is very very beautiful consumer protection. Just to give an example, मैं मेरी बेटी की शादी के लिए गाड़ी बुक करता हूँ, गाड़ी वाला बोलता है हॉल मिलेगा लेकिन सब केटरिंग वाला हमारा ही लेना पड़ेगा। चार देता हूं मैं, 4 में से सिलेक्ट करो, फूल वाला हमारा ही लगेगा, डीजे हमारा ही लगेगा, डेकोरेशन हमारा ही लगेगा, साला सब तुम्हारा लगेगा। मेरा खुद का धंधा ही केटरिंग है, मेरी बेटी की शादी में मैं केटरिंग नहीं करूंगा, आई एम द केटरर, दैट्स माय बिजनेस। नो, दिस इज सॉरी सर, दिस इज द टर्म्स, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, restrictive trade practice, and believe me this is written in the Consumer Protection Act 2019. ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे 50 एग्जांपल्स में ले सकता हूं। फ्रेंड्स, the law is so much tilted in our favor that we don't use it. So unfair contract में भी टाटा AIG का केस चला गया। Lawyers don't come under the Consumer Protection Act. ये लेटेस्ट गाइडेंस है मेडिकल इंश्योरेंस पे। फ्रेंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस गॉड फॉरबिड एक्सपायर हो गए या गॉड फॉरबिड बड़ा बिल आ गया, खड़े हैं हॉस्पिटल के बाहर, बिल क्लियर नहीं करोगे तो ले जाने नहीं देंगे, ये भरो वो भरो, टाइम लगेगा, क्लेम है, सिस्टम डाउन है, क्या कुछ भी होता है। और हमारी फिजिकल, हम इतने ट्रॉमेटाइज स्टेट में होते हैं कि वेरी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। IRDA का गाइडलाइंस कभी का है, देख लो तारीख, टुडे वी आर ऑन 2 जून। बड़ा गाइडलाइंस है 17 पेज का, मैंने रेलेवेंट पार्ट आपके लिए लेके आ गया हूं। Insurance should provide insurance to all types of medical conditions, all pre-existing diseases, all systems of medicine. आयुर्वेद को नहीं देते, इसको नहीं देते, no, all ages, all ages. मैं तो आपको सर्कुलर दे रहा हूं। Okay, next. 75. He will just drop the phone. He will not talk to me because अरे इतने आजकल के सारे एंड्रॉइड फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम है। ओके, आपको पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन नहीं पसंद है, 30 डेज के अंदर दो, कैंसिल करो। कैंसिलेशन, ग्रेस पीरियड, पोर्टेबिलिटी, टाटा एजी से हटो, ICICI में जाओ, लॉम्बार्ड से हटो, इधर जाओ, पोर्टेबिलिटी अलाउड, नो पॉलिसी एंड क्लेम ऑफ कंटेस्ट नॉन डिस्क्लोजर छोड़ो, ये पढ़ो। ये 1 आवर मैंने लिखा है ना, वहां कैच करो, 1 hour or 3 hours. Insurer shall grant final authorization within 3 hours of receipt of discharge authorization from the hospital. होता क्या है रियल लाइफ में?
3 दिन लगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बॉडी भी नहीं ले जाने देते हैं। मेरा खुद का मेरे को they were not allowed me to discharge for 3 days. Sir, I wish you the best of the health. But now there is this there, and this is the latest circular. You are going to be the first educated crowd to know that this kind of a circular of IRDA is there. और एक बात बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी IRDA से डरते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज IRDA से डरते हैं। हैदराबाद में आई हैव अपीयर्ड बिफोर देम। वो जो लेफ्ट राइट लेते हैं ना इंश्योरेंस वालों को, वायलेशन है, प्लीज एक्सप्लेन, पेनल्टीज ठोकेंगे 10 लाख 20 लाख 25 लाख 5 लाख, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। क्रिमिनल भी होता है। लीनियल एसेंडेंसी डिसेंडेंसी, ये शब्द आपने बहुत पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट में, खास करके सेक्शन 56(2)(10) में। लीनियल एसेंडेंसी कम्स फ्रॉम द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, लीनियल कोसैंग्विनिटी और कोलैटरल कोसैंग्विनिटी। लीनियल एसेंडेंसी डिसेंडेंसी मतलब मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरा बेटा, मेरा पोता। और लीनियल कोसैंग्विनिटी मतलब फ्रॉम अ कॉमन स्टॉक ऑफ एंसेस्टर्स, सब आ रहे, तो हम बोलते हैं हम दूसरे के काका बाबा के भाई भाई हैं, ऐसे हम शब्द वापरते हैं ना कई बार, बिकॉज हम इस लेवल पे रिलेटेड टू वन अनदर है, लेकिन हमारा स्टॉक ऑफ एंसेस्टर इज कॉमन। तो ये ट्राइंगल ऐसा हो गया। दिस इज नॉट लीनियल एसेंडेंसी डिसेंडेंसी, दिस इज कोलैटरल कोसैंग्विनिटी। दोनों शब्दों में फर्क है। ये शब्द कहां से आ रहा है? इंडियन सक्सेशन एक्ट से। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू ऑल, और मुझे एक ही जजमेंट मिला, मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरा बेटा, मेरा पोता, लीनियल एसेंडेंसी डिसेंडेंसी हुआ, करेक्ट? बेटी, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, नानी, यहाँ लीनियल एसेंडेंसी डिसेंडेंसी हुआ नहीं। क्यों? द डीएनए चेन तो चल ही रहा है ना, द लीनिएज तो चल ही रहा है ना। क्यों? मैं, मेरी माँ, मेरी माँ की माँ मतलब नानी, यहां क्यों लीनियल डिसेंडेंसी और एसेंडेंसी ब्रेक हो रहा है? पुरुष प्रधान समाज। सर अभी मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने मेघालय असम का तो अभी तक नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड, यू मे बी हैविंग अ वैलिड पॉइंट सर, यू मे बी थिंकिंग क्या है। 56(2)(10) में है ना, एनी लीनियल एसेंडेंट डिसेंडेंट एक्सेप्शंस में है ना। चलो चलते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट पे चलते हैं, लेकिन पुराना केस मिला 55। ये केस इनकम टैक्स का था, जिसमें लीनियल एसेंडेंसी डिसेंडेंसी किया एंड फीमेल चेन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। केस के साइड इसमें नहीं जा रहा हूं, पर फीमेल चेन को एक्सेप्ट किया गया है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का कोई साइटेशन फ्रेंड्स नहीं मिला। करप्शन, ह्यूमन राइट्स का, एनजीओ का मेन ऑब्जेक्टिव, अभी हमको एक ट्रस्ट बनाने का है। ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नाम क्या रखना ट्रस्ट का? भ्रष्टाचार विरोधी। हम बोलो भ्रष्टाचार निर्मूलन फाउंडेशन, ऐसा नाम रखना है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट केम अप विद द सर्कुलर, चैरिटी कमिश्नर का सर्कुलर 4/7/2018। कोई भी एनजीओ अपने नाम में करप्शन और ह्यूमन राइट्स नहीं रख सकता है। ये सरकार का काम है चेक करना, का नहीं है। सर्क्युलर ये रहा, मराठीत आहे, तुमच्या नावामध्ये दिस इज नॉट परमिटेड, आणि नावात आहे तर फेरबदल करा। कंपनी के पहले कभी भी मेसर्स मत लिखना, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूं, बॉम्बे हाईकोर्ट बोल रहा है। रीजन तो मैं नहीं जाऊंगा। फॉर्म के पहले मेसर्स लिखते हैं, कंपनी के पहले मेसर्स आज के बाद मत लिखना। It's a legal entity. It's an artificial person as per law, like you and me, without the right to vote. Compulsory installation, okay? Compulsory installation of cameras in police stations. कैमरा रख दिया, सब जगह उनको कैमरा रखना है, लगाओ, अच्छी बात है। ये भी लोगों को लड़ना पड़ा। लियोनार्ड का केस है, ये डेथ इन कस्टडी वाला कुछ इशू था, इसकी वजह से रखा। चलो ठीक है। एंड दैट सीसीटीवी शुड बी ऑपरेशनल। और कितने टाइम के लिए ऑपरेशनल? उसका डेटा कितना होना चाहिए? 1 साल का। आपके घर में कैमरा है, एक महीने के डेटे के लिए ना 2 TB का हार्ड डिस्क लगेगा आपको। एम आई राइट? 1 या 2 TB तो लगेगा। पुलिस स्टेशन साल भर का डेटा, ठीक है। चलो यहां तो कहानी खत्म नहीं होती है। पुलिस स्टेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पुलिस वाला आता है, कुछ भी हो जाता है ना, समय 10,000 थिंग्स हैपन और यू स्टार्ट, एवरीबॉडी आजकल मुंबई में तो पहले रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। सो ये रिकॉर्डिंग, यू सी सो मेनी रिकॉर्डिंग्स ऑन व्हाट्सएप,
So the police वाला take objection. You cannot record. No, you can record. मराठी में बोल रहा हूँ. त्यांच्या कामामध्ये अडथळा आणू नये. Don't bring any obstruction in his work. Then you can record. Okay. The matter went to High Court. Can you make a video recording in a police station? Police wala said this is a prohibited area under the Official Secrets Act. High Court said this is not a prohibited area under the Official Secrets Act. Official Secret Act में पता है एटॉमिक एनर्जी अपना चेंबूर वाला डिफेंस के एरियाज ये आता है. पुलिस स्टेशन कब से आने लग गया रे तेरा प्रोहिबिटेड में? हाँ उन पर झाड़ा बोल. अरे ये झाड़ा तो झाड़ा. अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो. अभी तो हद हो गई. पुलिस स्टेशन में तो छोड़ो, तुमको ईडी में, एनआईए में, सीबीआई में, एनसीबी, एसएफआईओ सब जगह पे कैमरास लगाने. फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल प्रैक्टिस इन द ईडी और पीएमएलए? आई डोंट नो. एक बार ईडी के ऑफिस में अंदर घुस के दिखो. आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस. सिर्फ अंदर घुस के दिखो, फुल वन पीस में, मोबाइल के साथ. हाँ ओके. एनआईए में तो घुसने भी नहीं देंगे और ईडी में भी नहीं. लिटरली नहीं फ्रेंड्स. No hard feelings for any of the agencies. All agencies are doing a good work. But friends, forget. They have been told by the Supreme Court that you have to install cameras. And if you install cameras, RTI में I can make an application for the footage. Are you getting it? Yeah. I stop over here. This is the rights given to everyone. Routine adjournments. People mechanically taking adjustment. Supreme Court has come down very heavily on this. Next law. Wife को अपने husband की salary मालूम होनी चाहिए. Family court, divorce proceeding. कई बार पता है सीए को फोन करती है, सुनिए ना आप मिस्टर देसाई का दे सकते हो क्या आईटी रिटर्न पिछले 3 साल का? अरे मेरे को मालूम है दोनों में झगड़ा चल रहा है, मेरे को कहाँ बीच में फंसा रहे हो? The question came down. आरटीआई में रिजेक्ट हुआ है पता है इंफॉर्मेशन. आईटीओ को लेडी ने आरटीआई फाइल किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि मेरे हस्बैंड का आईटी रिटर्न की कॉपी दो. द इनकम टैक्स ऑफिसर रिजेक्टेड. मैटर्स आर ट्रैवलिंग. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मेरे को मिला जजमेंट, and there it said that the wife has the right to know H1JMA. Police officers arrest. I'll come down on all these things, 41A etc. Stolen property. आपके जो ज्वेलर्स है ना क्लाइंट्स, एक कॉमन प्रॉब्लम होता है ज्वेलर के साथ. 9 बजे पुलिस वाला आएगा, आरोपी चेन इधर ही बेचा, हाँ साहब इधर ही बेचा, चला जाओ, गाड़ी में बिठाओ लेके जाओ. यही होता है. गाइडलाइंस बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र कि आप ज्वेलर्स के साथ चोरी का माल खरीदने में कैसे बिहेव करोगे और क्या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, वो प्रोटोकॉल इधर दिया हुआ है. पढ़ोगे तो हंसी आएगी. बट एनीवे, टाइम, प्लेस, arresting, you cannot be illegally picked up, investigation, a lot of things have been mentioned over here, and most of these times these are completely violated. At least let the jewelers know that ऐसा circular DGP का है, वापरना है नहीं वापरना is in the hands of the jewelers. FIR file करना, police station में जाओ. There are 2 type of offenses, cognizable, non-cognizable. Cognizable मतलब FIR lodge होना चाहिए. FIR लेते हैं क्या? For those of you who have interacted with the police. ओके. ललिता कुमारी का केस था यूपी में. दिस इज द सेलिब्रेटेड केस. ललिता कुमारी बच्ची का रेप मर्डर हो गएगा, जो भी होगा, बाप यहाँ मां भागा, कुछ नहीं हो रहा है. यूपी की बातें छोड़ दो. एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड देन द मैटर ट्रैवल टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर मैंडेटरी है. अगर तुमको कुछ जानकारी आती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है, करो. कौन से केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे? मैट्रिमनी, कमर्शियल डिस्प्यूट, मेडिकल नेग्लिजेंस, इसमें करोगे तुम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कितने दिन में करोगे? तुम 8 दिन में, 7 दिन में कंप्लीट करोगे. और उसके बाद एफआईआर फाइल करो या नहीं करो, जो भी हो 7 दिन में करो. करते क्या है लोग? Change the law. WhatsApp messages, evidentiary value, Indian Evidence Act 1872. WhatsApp पे, अरे देख उसने मेरे को WhatsApp पे भेजा, प्रूफ है मेरे पास. So is that evidentiary value, friends? Or sometimes अभी ITOs are sending us notice on email and we expected to log into the portal and check. Imagine करो WhatsApp शुरू हो जाए तो. आपको तो भेज दिया था 143.2 हमने, देखो WhatsApp पे. अरे यार अपनी लाइफ क्या हो गई? रोज पोर्टल खोलो, क्लाइंट तो खोलता नहीं है पोर्टल. और कई बार ईमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का देते हैं, which is very risky.
Never ever do that. I'm repeating, never ever do that. So service via WhatsApp, was it accepted? In a lot of cases, it has been accepted by the High Court, but in certain Supreme Court cases, they have come down that no, this cannot be accepted. Because for any electronic document to be accepted as evidence, अगर आप कल बोलते हो मेरे पास वीडियो है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, that is electronic evidence. Electronic evidence का एक section है 65B of the Information Indian Evidence Act, read with the Information Technology Act, जिसमें एक एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें इस आईएमई नंबर का ये रिकॉर्डिंग बहुत कुछ प्रोसीजर है. सिर्फ ये देखो मेरे को धमकी दे रहा है, सुनो. No, that is not enough. That is not at all enough. Now, in this case, they say that it is not a valid mode. Bombay High Court has said that yes, it is a valid mode in certain cases. Time will show. Obscene messages WhatsApp पे भेज देना. एक husband ने wife को obscene message भेज दिया. आपस में आजकल तो you understand society में भी pro and anti चलता रहता है. So both are firing messages to one another और groupism हो जाता है. तो even on WhatsApp, if you are sending messages, that can result in a criminal prosecution. ये judgment मैं नहीं लूंगा, मैं तुमको लूंगा एक दूसरा judgment which was very very beautiful. इस particular judgment में क्या हो गया? सिर्फ अपना status बहुत संभाल के रखना friends. Friends, you are the educated crowd. एक आगे का judgment लूंगा मैं. आपका WhatsApp status, आपके WhatsApp messages, DPs, everything plays a very important role. You're not the normal crowd, you're not the layman. यहाँ पे तो एक आदमी ने, this fellow, जावेद ने अपने WhatsApp status में 370 के बारे में डाल दिया. And he wrote some comment. Freedom of expression. He's been arrested. And provisions of sedition, etc. applied. Of course, thereafter, relief was given to him. Okay, you cannot drag a WhatsApp messages to this particular extent. Social media platform. This is the judgment which I think so. Yes, Shekhar ka judgment. This is important, friends. यहाँ पे क्या हो गया? Group है. All of you are on some WhatsApp groups. उस ग्रुप पे किसी ने एक मैसेज डाला और फॉरवर्ड किया. मैंने फॉरवर्ड किया. Forwarding a message. Look at the High Court's judgment. Madras. Forwarding a message is equal to accepting and endorsing the message. सोच समझ के फॉरवर्ड करना. What is said is important, but who has said it is very important. एक सामान्य व्यक्ति कुछ भी बोल देना चलेगा, आप बोलोगे नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बात का वजन है. So the moral of the story is जितना हो, personally मैं मेरी बात कर रहा हूं, I avoid being on any social shouts, whether Insta, whether Face, whether this, whether that. Avoid on any social shouts as a professional, nothing. At the appropriate forum, you can make your comments on economics and statistics, nothing beyond that. Who has said it itself? People should not go with a feeling that we can air anything and just get away. उसने किसी lady के बारे में कुछ WhatsApp forward कर दिया होगा, and making a statement in the group is amounting to defamation. Please understand that. And FIR, if possible, if the person is very determined, he can file a case at the MM court. This is my favorite case. देखो इसको मैंने heading क्या दिया? Where is it written that you cannot? I know you will not understand this. 2 मिनट को इसको पढ़ो मत. Just read. Hear to what I'm saying. Can you withdraw an appeal before the CIT appeal? अच्छा, मैं CIT appeal हूँ. अपने फाइल किया मेरे सामने appeal 246A का. You want to withdraw? I'm asking you. Act में किधर लिखा है withdraw कर सकते हो? Show me that section, Mr. Counsel. We are not going to ask that question, but as an assessee, we can say, अच्छा, CIT appeal आप बताइए कि एक्ट में ये कहाँ लिखा है कि मैं नहीं विड्रॉ कर सकता हूँ? It's an argument. This is what came up in Supreme Court. अभी ये पार्ट को थोड़ा सा be with me and read it, huh? Just be with me. Courts are to act upon the principle that every procedure is to be taken as prohibited unless it is provided by the court. So the courts will not go by this procedure, but the courts will go by this procedure that every procedure is permissible till it is shown as prohibited by law. आप समझ गए पलड़ा किसकी तरफ है? एसएससी की तरफ है. तू मुझे बता कहां लिखा नहीं है? By default है. Use it carefully. FIR against builders for cheating. Routine thing.
पैसा लिया, फ्लैट नहीं दे रहे, ये रिटर्न नहीं करे, अमाउंट नहीं दे रहे, रीराइज ऑल सिविल कॉम्प्लिकेशंस। आई एम गिविंग यू द सर्कुलर ऑफ डायरेक्टर जनरल पुलिस महाराष्ट्र 1/7/2016 का. This is the circular where it's come down very heavily on builder for criminal offenses and the routine offenses that most of the people face. This is there. ये क्या काम का है क्या? नहीं है. Anyway, छोड़ दो, जिसको काम का है, घर में कितना बियर रख सकते हैं, घर में कितना लिकर रख सकते हैं, फ्रिज में कितना रख सकते हैं, वो इसमें तो लिखा हुआ है. I'm skipping it, छोड़ दो. No arrest required to produce before police. Now one more thing friends, कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन आता है, तुमचं नाव राजेश संघवी हो, जरा पोलीस स्टेशन मध्ये या, जरा इन्फॉर्मेशन किंवा जे काय असेल तुमच्याकडनं माहिती पाहिजे, स्टेटमेंट रेकॉर्ड करायचं आहे. द फर्स्ट आन्सर बाय पीपल, साहेब मी आता जरा बाहेर गावी आहे, मी 4 दिवसात येणार आहे, मग आल्यावर मी फोन करतो. कोण गावी आहे म्हणजे आल्या इकडेच आहे मी. But that is the way, you know, okay, so the answer is, friends, if the police have to call you, I can understand, courtesy is another thing. Otherwise, they're supposed to issue to your notice under 41 or CRPC. और 41 CRPC के बाद आपको वहां पे जाना चाहिए एट द डेजिग्नेटेड टाइम एंड प्लेस, और टेक एन एडजर्नमेंट इन राइटिंग, और ईमेल भी होता है उसके ऊपर, और व्हाट्सएप भी कर देना. सो 41A का ये लोग दे देते हैं नोटिस पुलिस वाले, और कई बार वो नोटिस जाता ही नहीं है, और फिर बोलते हैं ये आया ही नहीं, and then they get a chance to arrest. Are you getting the point? 41A के violation पे they can arrest. Professionals be very careful. बुलाने, that's okay, I can understand. Write to them, yours very skilled in replies. 41A का notice है, then you go and attend. And you can ask for adjournments also. 41A को कभी ignore मत करना. Here there was a case, you know, where 41A में क्या हो गया, notice दिया, वो आ रहा है, पुलिस वाला भाग रहा है. फिर अरे तुम आए नहीं, साहब मैं आया था, आप नहीं थे, अच्छा कल आ जाना, कल आता है, वो भाग जाता है. और फिर उसको अरेस्ट कर लिया कि आया नहीं. एंड दिस फेलो वेंट टू द तेलंगाना हाई कोर्ट. साहब मैं इतनी बार मैं गया हूं, चेक कर लो उनके सीसी फुटेज में, और ये साहब नहीं थे, और अभी बोलता मैं नहीं आया. मॉरल ऑफ द स्टोरी, पुलिस स्टेशन में जाओ तो सेल्फी निकालो, विद द जीपीएस. ये तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट है. द हाईकोर्ट केम डाउन हेवीली ऑन पुलिस वाला. तू नहीं रहता उधर तो उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि यू नो वो पिज्जा वाला भाग जाने का, सो उसका 15 मिनट में डिलीवरी नहीं आएगी. वेस्टिंग कोर्ट टाइम ड्यू टू लिटिगेशन, एडजर्नमेंट. दिस वाज द क्लासिक केस बिफोर, सॉरी, एडजर्नमेंट. जीएस पटेल एक बार भड़क गए, दो बड़ी कंपनीज. Okay, so you want to file a reply, then you want to file a rejoinder, then you will want to file a sub rejoinder, then you may want to give a reply to that. आप करते रहो, मैं आराम से 3 साल बाद का डेट देता हूँ. तो दोनों को भगा दिया. Wasting time. Reddy Reckoner versus valuation. Friends, इसमें this is a nice point. Reddy Reckoner is indicative. Let's use that word. पर ये बोलना easy है. ITO सुनता है क्या indicative? So if there is a auction, the auction value can be treated. Okay, it is clear. Friends, कोई dispute में, I'm not calling the word friendly dispute, लेकिन कोई dispute, friendly dispute create हो, उसमें arbitration clause डाले. Arbitration अपना arbitration, sorry, हमारे घर का arbitration award देता है, which is an arbitral award. उसमें property का एक price determine होता है based on certain calculations, whatever, based on the facts and circumstances, and based on that the transaction takes place. Whether it will violate Reddy Reckoner, it's an arbitral award, it can be challenged in the high court, but that is there. That is a possibility I'm showing. इसको beautifully touch किया इस judgment में. Auction is also treated as, अपने कौन सी companies होती है who buy property at a very cheap rate? AMC नहीं, asset return, ARCs. उनका price देखो Reddy Reckoner से बहुत कम होता है ना. That's accepted. But ये सब में I want to show you these lines of the Supreme Court जो आपको काम आएगा. Mere existence of tenancy results in considerable decline in the market value of the property. Fact है ये. तो पगड़ी की जगह उसको मैं खरीदूं तो market value तो नहीं मिलेगा ना. The purchaser will be acquiring the property hardly in an ideal scenario and will be left with the burden of the legal process. In such a scenario, there is actually a great depression in the market value of the property, which is not a reflection. The transacted value would be less than half of a vacant property. एक इंडिकेशन दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि पगड़ी की जगह टेनेंटेड प्रेमाइसेस की वैल्यू कैन बी लेस देन हाफ ऑफ द
market value. No, I am not saying this is directly on 50C. I am not saying that. I am saying draw an inference wherever needed. Defamation section 499 500. Friends, ये case 9th May का judgment है. I'm sorry, I'll just run fast a little bit, or else after some time I'll stop. Conveners. Bombay High Court. No, I understand. I understand. I should not become a heavy load for the audience. Friends, Bombay High Court, हाँ, एक आदमी दुकान पे बैठा है, एक एक्स एसीपी आता है. ये आदमी उस एसीपी को क्या बोलता है जरा सुनिए इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल और अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करना. आई एम स्पीकिंग इन मराठी. ए तुला अँटी करप्शन सोडलं तरी काय झालं, तुम्ही सगळे यायला चीटर आणि करप्टच आहोत. स्टॉप. Even if you are exonerated by the ACV, you are a cheater and corrupt. बड़ा जनरल स्टेटमेंट है. सॉरी, I'm just making a बड़ा जनरल स्टेटमेंट में लाइफ का बोल रहा हूँ. हम नहीं एक दूसरे को बोलते थे एक नंबर का चीटर है वो. 4 लोगों के सामने बोला. एक्स एसीपी, डिफेमेशन सूट, मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेस दे दिया. आए जाए नहीं वो मेरे को नहीं मालूम. हाईकोर्ट में गया क्वेश्चन करने को. हाईकोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग. आपने 4 लोगों के सामने उसको चीटर करप्ट बोला. भले उसको एसीबी ने क्लीन चिट दिया, कुछ तो भी करप्शन चार्ज डाला होगा, एंटी करप्शन ने क्लीन चिट दिया. आपने सबके सामने बोला है दैट इज डिफेमेशन, दैट इज एन इम्प्यूटेशन अफेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. यू डू नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शंस अंडर 499 ऑफ आईपीसी. यू विल हैव टू फेस ट्रायल. सोच समझ के बात करना चाहिए. लेमेन्स इतना नहीं समझेंगे. यू कैन यूज दिस and you can defend also. Both ways are there. जबान संभाल के. Renewal छोड़ दो. Education, extraordinary fees charge की जाती है. Will you agree with me? Very high fees. ठीक है, छोड़ देते हैं. जरा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सिर्फ सुन लो. The fees was impermissible, arbitrary, etc. etc. ये पार्ट मुझे बेस्ट लगा एजुकेशन के बारे में. और प्लीज कनेक्ट इट विद स्कूल्स, कॉलेजेस, वेरेवर. सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है. एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड ट्यूशन फीस शैल ऑलवेज बी अफोर्डेबल एंड दैट इट हैज टू बी एज पर द fee fixation committee, etc. etc. It's a very hard-hitting statement, friends. This is saying that education is not a business to earn profit. हम अपने सारे एनजीओ में 215 में एजुकेशन को लेते हैं मेन क्लॉज. वो एक अलग बात है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अंडर 2 सबसेक्शन 15. नोबेल का केस देखना आप, नोबेल एजुकेशन सोसाइटी का केस. दिस इज वेरी क्लासिक. इसमें एजुकेशन को डिफाइन किया. आप एजुकेशन को क्या समझ रहे हो? राइट नाउ एम आई एजुकेटिंग यू और somebody delivering you have some coaching class or something. Is that education? या मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूं फ्री में. Is that education? नोबेल एजुकेशन का केस 2022 का 12A का था. वो सब छोड़ दो. एजुकेशन मीन्स imparting formal scholastic learning. That is what the Income Tax Act provides. मैं आपको टेक्निकली एजुकेट नहीं कर रहा हूं. This is a very formal scholastic education which they have done, and they have equated education with charity. It cannot be business, trade, or commerce. That means any high profile school, any high profile college, institution, management, medical, whatever, if you have enough evidence to prove that they are making a business out of it, they had it. Death, executor, इंसान मर गया, उसके बाद उसका पैन का प्रॉब्लम होता है. I don't know how many of you all face it. I don't have a definite answer, but I want to show you all some sections. 168 artificial jury. If the executor, then you know in a will executor होता है. Okay, the executor steps in over there. अभी 168 तो अच्छी तरह पढ़ लेना. ये आरबीआई के ब्यूटीफुल गाइडलाइंस है ऑन द केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन. हाँ, पर ये छोड़ो. ये हाईकोर्ट का आई फाउंड अ नाइस केस. वो पर्सन डाइड और वो सरस्वत बैंक वालों ने बोला, बिकॉज द नेम इज देयर इन द पब्लिक डोमेन, उन्होंने बोला उनका पैन नहीं चलेगा. अभी एस्टेट ऑफ लेट राजेश संघवी ऐसा पैन लाओ. जैसे बोला क्या तुम एक ही बैंक हो क्या जो ऐसा मांगता है? वो बैंक को बोला देखो वो तो चला रहा है. बोलो वो नहीं मालूम ऐसा एस्टेट ऑफ लेट सो का पैन. ये ऐसा कौन सा पैन किस में जाता है? इंडिविजुअल में, एओपी में? High Court guidelines were given.
And consequent to that, High Court passed an order that this has to be done. Sorry, I cannot amplify this. This order is helpful. और RBI के guidelines है तो yes, estate of late Rajesh Sanghvi can be done. और अगर will बना रहे हो तो be careful, उसमें executor एक है तो individual में चला जाएगा, दो बना है तो AOP में चला जाएगा और AOP का अलग PAN number लेना पड़ेगा. These are very tricky things. I'm not touching on this topic. I'm just breaking open this topic before all of you all. PMLA में एक बार एक आदमी पैसा लेके जा रहा है रिश्वत देने के लिए, दिया नहीं, पकड़ लिया, PMLA लगाया. क्यों? तो सच बोल कहां जा रहा था. Intention of mind was also taken that the intention is to give bribe. He is covered under PMLA. हद हो गई. General Clauses Act छोड़ दीजिए ये सब. I'm sorry, I'm just skipping. Right to free and compulsory education. I've delivered in 2009. This was one of the acts जिसके अगेंस्ट मैंने आंदोलन किया था. And I was taken to सह्याद्री पुलिस की गाड़ी में. No child will be subject to physical. टीचर मारेगी नहीं. सही है, मार तो हमने सब खाई है. हाँ, अपने बचपन में एक तो पढ़ी होगी ना, बहुत पढ़ी है. So no child will be subject to physical punishment or mental harassment. अरे साला मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस के ऊपर कॉस स्क्वायर तो आज तक समझ में नहीं आया. मेरे को तो अपने सीए में डेफिनेट इंटीग्रल्स क्यों पढ़ाया था, मेरे को प्रैक्टिस में डेफिनेट इंटीग्रल्स काम में नहीं आया आज तक. मेरे को आज तक समझ में नहीं आया. दैट वाज रियल टॉर्चर. मेंटल हैरेसमेंट तो विचार हर बच्चे के लिए. अब टीचर्स मार रहे हैं, ये भी केस चला गया हाईकोर्ट में. और हाईकोर्ट ने एक्चुअली बोला इस केस में, रेखा के केस में 23 में, कि टीचर थोड़ा बहुत मारेगी. व्यावहारिक है ना. ये ना हम लोग मजाक करते हैं. यूएस में तो फोन करो तो 911 करेगा ना बच्चा. माय डैड इज हिटिंग मी. आ गई पुलिस और लेके गया बाप को. यू मस्ट बी नोइंग. ओके, यूएस कनाडा में तो बच्चों को मार नहीं सकते ना. जैसे चलो अब मजाक की बात करो. फ्लाइट जैसे यूएस से टेक ऑफ करती है और मिड एयर में आ गई ना, इंटरनेशनल एयर में, धनाधन मारना चालू करो बच्चों को. अब दिला तेरे 911. जितना कसर है ना सब फ्लाइट पे निकालो. छोड़ दीजिए. पीयूसी कैन नॉट टेकिंग. फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन आई एम स्किपिंग. दिस इज अ लेक्चर इन इटसेल्फ. रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम. ये नहीं, ये बरोबर है, ये बरोबर है, रजिस्ट्रेशन होना नहीं, क्योंकि सब एजेंट्स करते हैं रजिस्ट्रेशन. प्रोफेशनल्स बहुत कम है और प्रोफेशनल्स समझते ही नहीं है. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट, सॉरी आई एम स्किपिंग. ये एक जजमेंट मुझे देना है. डीप केस, डीप अपार्टमेंट्स. यू नो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होता क्या है. यू हैव गॉन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस. होता क्या है, तुम्हाला प्रॉपर्टी कशी काय मिळाली, मग त्याला पार्टी का नाही बनवलं, मग त्याचा लिगल एअर कोण आहे, मग त्याचा एफिडेविट का नाही घेतला, मग तो मालक नाही आहे, एटसेट्रा एटसेट्रा. कोण, हु आस्किंग दिस क्वेश्चंस? रजिस्ट्रार. My question to them: are you a title determination authority? What's your goddamn job? Check the name of the parties, check their identities, do the registration and shut up. यही भाषा हाई कोर्ट ने डिग्निफाइड तरीके से इनको बोली. Your job is not to check the title. राजेश संघवी ताजमहल बेचे और कुतुब मीनार खरीदे, उसके और शाहजहां के बीच की बात है. तुम्हारे बाप को क्या तकलीफ है? Right? Document getting registered, I'm making a statement. A document getting registered doesn't mean the title is transferred. No. It can still be challenged in the civil courts. It's not a document being registered only means that document has become public. कोई भी जा सकता है, कट IGR पे और डाउनलोड कर सकता है. That's all. It doesn't mean that the title is transferred. No. तुम वो अथॉरिटी हो क्या चेक करने के लिए? नहीं, सिविल कोड बैठा है उसके लिए. So just keep quiet. Sir, if you permit me, this correction. For those old registrations which are stopped now. You will excuse me for that. You are entering into very deep waters. I know. Maybe I can help you out later on. I'm understanding where you're heading for. Can you help to share what? Yeah, I'll try, but not now because I'm running awfully short of time. And I know my conveners will stare at me. Okay. No, I still know. So he cannot, and if still the registrar refuses now, still he refuses now, उसको बोलो ठीक है, नहीं करना है ना, रिफ्यूजल रजिस्टर में जो नोट करा, ये क्या बात है? हाँ,
रिफ्युजल रजिस्टर मध्ये नोंद करा की तुम्ही ह्या कारणामुळे माझं रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करत नाही आणि त्या ऑर्डरच्या विरुद्ध आय विल गो इन अपील टू द कंट्रोलर स्टॅम्प्स, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन IGR, और वहां से हाईकोर्ट में मैं जाऊंगा. दैट इज एन ऑर्डर, इट्स अ चैलेंजेबल ऑर्डर. वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कर लेगा रजिस्ट्रेशन. फ्रेंड्स, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलग चीज होती है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है. एग्जीक्यूशन मींस एक्चुअल साइनिंग एंड द साइनिंग हैज टू बी डन इन द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पर्सन. केवल साइन इनफ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आ गया, ये रहा. एक आदमी ने लिखा, अरे उसने साइन किया एग्रीमेंट, मेरे को उसने फ्लैट बेचा है, देखो उसकी साइन है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला साइन है तो ठीक है, दैट डजंट मीन द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड. अरे व्हाट डू यू मीन? एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? साइन किया ना, इट्स एग्जीक्यूटेड. सुप्रीम कोर्ट से नो, इट हैज टू बी इन द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पर्सन. एक पर्दा निशीन लेडी से आपने साइन तो ले लिया, उसको पता है क्या वो प्रॉपर्टी बेच रही है? नॉट अलाउड. माय लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू ऑल इन दिस, इसी लॉ में समथिंग न्यू, सॉरी नॉट दिस पार्ट, आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग एल्स. फ्रेंड्स, आदमी ने विल बनाई, आदमी मर गया. Now can the will be registered? I know you're going to answer no. I know you're going to answer no. Yes. Section 40-41. मैं नहीं करता, किताबों में लिखा है यारो. That's what I was telling you. There are beautiful provisions in the law. We don't know. Executor जाके register कर सकता है for certain purposes. Yes, he can do it. There are conditions. Now the registrar has to be careful. Now he has to be careful. But there are conditions it can be done. और आपकी जानकारी लेके बताता हूँ, अगली बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओगे ना, उनके जो फलक होते हैं ना बोर्ड्स, उसको थोड़ी देर पढ़ना और मेरा ये स्लाइड याद रखना. Okay. This is a judgment of Supreme Court. A gift of immovable property by a Muslim need not be registered. By Hindu, has to be. By Christians, has to be. No, I'm not on the Universal Civil Code. I'm not on that. I'm not on uniform. मैं आपको law point बता रहा हूँ बस. I don't know anything beyond that. This is a Supreme Court judgment on that. It need not be registered. Partnership Act related. The legal heirs of a partnership, a partner, they do not become liable for the liabilities of the firm. Legal heirs step into the shoes of the deceased partner. Tenancy rights, I'm just skipping that. एक question सबका होता है. Father मर गए तो भाड़ा चिट्ठी किसके नाम पे ट्रांसफर होगी? I should not cover that part, but basically go to section 715D. The person residing with the deceased at the time of death or doing business of the deceased at the time of the death, that is important. और supposing एक 15 जनों का परिवार deceased के साथ रहता था, तो 15 जनों के नाम पे भाड़ा चिट्ठी आएगी क्या? Any one person वो ले रहा judgment. Any one for all, हाँ? One का मतलब नहीं कि हाँ मेरी हो गई अभी. One for all. इसलिए and others लिखते हैं ना कई बार ORS. Okay. Contradictory clauses in an agreement. This is an interesting point. आप एक agreement बना रहे हो. Clause number 2 में आपने कुछ लिखा और clause number 25 में आपने कुछ लिखा. दोनों contradictory जा रहा है. प्राधान्य किसको दिया जाएगा? हाँ. मैं नहीं कहता हूँ, Supreme Court. This was a nice case where contradictions are clauses में. They gave preference to the earlier clause. आपका numbering भी important है, clause numbering. Clause numbering है ना मजाक. इसको ऊपर ले लेना, इसको नीचे ले लेना. सोच समझ के करना, जब ये जजमेंट याद आएगा. राइट टू बी फॉरगॉटन एक अच्छा केस है. कई बार क्या होता है रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, गैंग रेप केसेस में लड़की नहीं चाहती कि उसका नाम आए या फैमिली वाले नहीं चाहते हैं. हाई कोर्ट ने दिया है, देयर इज अ राइट टू बी फॉरगॉटन. वो लोग नाम कैसे लिखेंगे मालूम है? XYZ ABC ऐसा आएगा नाम. मास्किंग होएगा. हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी आपको नाम नहीं देखेगा, मास्क आउट होएगा पूरा, नाम ही नहीं आएगा कहीं पे भी. सो दैट हैज बीन गिवन. एंड नाउ वन ऑफ माय फेवरेट्स, the judgment of Bombay High Court. Sorry, topic change हो रहा है. बहुत heavy हो गया तो I'm just cooling down. Sometimes in high courts also you find funny things happening and funny judgments also. So एक छोटा मोटा आरोपी था, गैम्बलिंग मटका वटका करने वाला. कोल्हापुर की बात है ये. तो जामीन पे रिलीज हुआ होगा ऑन बेल. सुबह 7:30 बजे
चाय की दुकान पे गया नाके पे और नीचे बैठ के चाय पी रहेगा, पुलिस की गाड़ी आती, खिड़की डाउन करता है मराठी में, काय रे काय करतोय साहेब, चहा पितो, थंड आहे थोडीशी, चहा पितो मी. अच्छा, चहा पितोय, जास्त हुशारी मारतोय, चल गाडीमध्ये घ्यायला. मी काय केलं, यू ऑल अंडरस्टँडिंग मराठी? सो दॅट्स अ ड्रामेटाइज मराठी, घाटावरची मराठी. सो साहेब मी काय केलं त्याच्यामध्ये, साहेब मी चहा पित होतो, ह्याच्यात गुन्हा आहे का? चहा पिणे या देशामध्ये गुन्हा आहे का? ते मला काय माहित नाही, बस गाडीमध्ये लेके गए, अरेस्ट कर उसको. बेल बेल बेचारे को मिला नहीं, अब वो भी हाई कोर्ट पहुंचा. सो नाउ इन द हाई कोर्ट, सो यस पीपी, व्हाट इज द मैटर? योर ऑनर, ही हैज बीन अरेस्टेड. यस, व्हाट इज द चार्ज? योर ऑनर, संदिग्ध परिस्थितीमध्ये चहा पित होता. मराठी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करूं? He was drinking tea in suspicious circumstances. So जज की मी सटकी, संदिग्ध परिस्थितीमध्ये चहा पिणे काय असतं? असं बसून सुरू करून पिणे, आवाज काढणे जोरात, असं इकडे तिकडे बघणे, ते काय एकूण असतं? रिलीज हिम इमिजिएटली. मतलब कभी कभी यू नो लाइक द लॉ also comes down in favor like people, and this is an actual case of विजय लाहौर पार्टी जज की जो सटकी है नागपुर बेंच में, तो सटकी करते क्या हो तुम लोग ये सब, जिसको चाहिए उठा के लेके आ जाते हो. सरकारी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो तो प्राइवेट यूज के लिए नहीं यूज कर सकते. एग्जाम्पल दूं, सुबह सुबह 8 बजे स्कूल के बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी, या फलक लगा के बैठा है, क्या करो, पिक्चर क्लिक करो, कटक. संडे के दिन शाम को ओबेरॉय मॉल के बाद पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कटक. इट्स नॉट अलाउड, दिस इज अ सर्कुलर. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी सर्कुलर है, पुलिस का छापा गाड़ी पे नहीं चलता है. Person working in the government organization at a very top level. जी. Has a letter in the official capacity. Can he write a personal letter? No. Personal letter. Suppose he is a member of the society, he is writing it to the society. As a member, can he use that letter? Sorry, I need to check on that particular aspect, which I am not, but this is only the car only. Anyway, friends, that was a little bit of research which I could do and present all these slides. I don't think so there'll be any questions, but thank you so much for the patient presentation. Jai Hind, Jai Bharat. Sorry, the presentation will be with the conveners and they can share it with everyone. प्रेजेंटेशन सबको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, वहां से नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स. और राजेश जी ने कैश फ्लो के बारे में जो बताया है, वो इतनी भीड़ देख करके जो है समझ में आ रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग लगा है. आई रिक्वेस्ट सीए सीमा मेहता टू give you friends, कोई भी चाहे नहीं प्लीज, अभी चीट निकलने वाली है, जिनका नंबर आएगा उनको प्राइज ही मिलेगी. ओके, मराठीत करूया चालेल. Thank you, CA Rajesh Sangve ji, for the wonderful session. The session was really very nice. खूपच छान सेशन होतं. सगळ्यांना खूप मजा आली बेसिकली. म्हणजे लॉज सुद्धा एवढे सगळे लॉज आणि एवढ्या सगळ्या लॉज बद्दल तुमचं नॉलेज एवढं सगळं आहे आणि एवढं वाचन तुमचं आहे हे सुद्धा आम्हाला कळलं. मीन्स वन मोर लाऊड ऑफ अप्लॉज फॉर स्पीकर राजेश संघवी जी. Thank you, and actually members are also benefited and interesting and knowledgeable session. Thank you very much. Sunil S. Samre, membership number 107182.
Very